Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are live once again, as already updated. We are live from the Pulwama Sports Stadium for an all-important clash. This is semi-final number 2 of Royal Super League Pulwama between Sarkar 11 and Sky Stars Budgam. Hope Outfits have already cemented their place in the finals by defeating the mighty side of Royal Goodwill. And today we are expecting to find the second finalist of Royal Super League Pulwama. And it's all between these two, Sky Stars Budgam and Sarkar 11. Sarkar 11 captain Sahil Shefi won the toss and he elected to field first in this all-important second semi-final clash. It's all about to begin, and you could see the two opening batters of Sky Stars Budgam making their approach to the centre. And we could also find the fielders of Sarkar 11 just getting ready to take their respective spots. They are fielding first. The crowd coming here in huge numbers and taking their respective seats to enjoy. Out here with sun not on the peak, it's quite great, and not having the bright sunshine, so the crowd will feel it completely pleasant to enjoy this beautiful second semi-final. As you can see at your screens, Sakib Pandya, and it's surely gonna be the man. If he just stays on the crease for a round of power play, will be the man, or will just try to take his side up Sky Stars Budgam to a massive start in the power play. And I could see the players assembling all around, the men in blue of Sarkar 11. And in between, before the start of the play, they are taking a bit of a conversation and tips from their all-season skipper. That's Mr. 360 Khalid Butt. Yesterday defeating mighty Parvez Rasool's side, Bijbehara Sports Club, in that Bijbehara Premier League Season 4. And what a crucial contest that was. Ultimately, they got over the line by the barest margins of just 17 runs. And they were crowned the title of Bijbehara Premier League Season 4. So their morale is high, the confidence is completely touching the sky. And they will be just feeling completely at ease in this all-important second semi-final of Royal Super League Pulwama. They are also the champions of the first edition if we talk about Royal Super Knockout Cricket Tournament. They also happened to find the finals in the second edition as well, but they were defeated by Royal Cricket Club Kasba Yar at the hands of Ishtiaq Rasool. And once again they find one more opportunity to cement their place in the finals today against the likes of Sky Stars Budgam. So we are expecting a good contest, as crowd coming here in huge numbers, adding to the boost of this very Royal Super League. And you could see two umpires as well, Mr. Sami and Mr. Nadeem. They have been doing a fantastic job, very excellent umpiring, and they have been officiating in this Royal Super League right from the commencement. We are giving you live streaming from 3 different media platforms. It's JK Cricket Zone, it's Baba Nisar Sensation, and it's Sky Stars Cricket Club. Hope you're enjoying the streaming on all the 3 media platforms. And it's just some moments away, and we are clicking the clock for the second semi-final of Royal Super League Pulwama, done by Mr. Butt Irfan, who is acknowledged and famous by the name of Sarkar Pulwama. Still some moments away, and we could see the two openers. It's left and right hand combination. Sakib Pandya, as usually and always, he does take strike alongside his left-handed, dashing, stylish left-handed batsman from Pulwama is Shabir Lefty. Lot dependent on the man, and I would love to just get a very decent and disciplined start in this all-important second semi-final out here in Sports Stadium Pulwama. Khalid Butt today not doing the job as a wicket-keeper. He might be standing in the slips. And you could see Khalid Butt here to his screens. They are men in blue, absolutely adding to the atmosphere. And the environment is pretty hot and humid. It's all on account of the spectator just enjoying out here. We have already witnessed
A massive number of crowd when it comes to the Royal Super Knockout Cricket Tournament in its edition 2 that won the hearts all over, and same is going to be witnessed in the coming days. The final is set to be tomorrow, but we have to wait which team of the two is just going to rise to the occasion and which one is going to crumble under the pressure situations. It's all set. Sakib Pandya, recently you could see is going some through bad patches. He does get some start, but is not able to convert that into a big one. And today I guess it's going to be a big start today. A very great platform for Sakib Pandya. I've got with me my fellow commentator Saklan Mushtaq. We'll love to have some talk with him and love to have his views and expressions, what he believes about this very second semi-final. बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा. साकिब पांडे की हम बात कर रहे हैं, लगातार उस फॉर्म में नहीं है. पहली गेंद के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो बासित को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया. पहली गेंद पड़ने के बाद और बाहर निकली और पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं. तो यहाँ से देखने वाली बात होगी स्टार्ट किस प्रकार का मिलेगा यहाँ पे सिटी स्टार्स बडगाम की टीम को. Sakib Pandya, he faces the first ball, and I could see Khalid Butt standing in the lone slips. There is a backward point, a straightish point. I could see a mid-off just standing on the edge of the circle. And straight away we find some problems with the ball, and Khalid Butt is having some questions and is just getting close to the umpire. But meanwhile it's actually the landing mark of the bowler, and some sawdust is being added to that mark where the bowler just lands his marks, lands his foot and feet. This is a very good scene out there. Sakib Pandya and Shabir Lefty opening the account, opening the proceedings, and Basit Butt, he marks the start of the bowling proceedings. On the onside we could find a mid-on. If we find a deep square leg just on the verge of the boundary, these are the two fielders just fielding on the onside. We could find a short mid-wicket in place as well. Some glorious scenes out here in Sports Stadium Pulwama. It's going to be a jam-packed stadium as the time progresses. Sakib Pandya with jersey number 199 at our screens. And he got the nag of just playing in the power play. He tries to take the full advantage of the circle. And he does stand on the crease for around a power play. The runs will come in bulk and come in thick and fast, I tell you. There goes Butt Basit, second time in the over, right away from the pavilion structure. And there it goes, first shot, I guess carrying all the way. Yes, it does. First 6 of the semi-final. Slightly over pitch, and it goes up and over. This is what I was telling you about Sakib Pandya. He's very, very disastrous at the early off his approach. Anything in his radar, he will make you count for the runs. First 6 of the semi-final. And Sky Stars Badgam opening the account of the runs. It's 6 for no loss. We could see a hint of a swing as well. And we are live from Sports Stadium Pulwama. This is all important semi-final number 2. This is Royal Super League Pulwama. It's Sky Stars Badgam, and they are locking horns against the likes of Sarkar 11. A bit of a change we could see. Third man brought inside the circle. It's really packed. Offside field looks a bit of a cordon is going on, and he just rides onto the bounce, allows the ball come close, tucks it round the corner straight to the short point, and no addition to the total. We got some good combination if we talk about the two sides. Boy Mir, who has been included in the side of Sky Stars Badgam, is also a very clean striker of the ball. And a day ago, Adil Karcher is captain in the side of Sky Stars. He got a beautiful unbeaten ton out there in the Lilhara Premier League. Next ball, he guides it down. The gully fielder just cut the ball off. No addition. The score simultaneously resting on 6 for no loss. We are in over number 1.
And talk about Shabil Lefty is also looking in a good touch, but ultimately couldn't score too many yesterday out there in the Premier League Bijbihara finals. A lot was depending on the man, but it was beautifully caught behind by Khalid Butt behind the sticks. Let's find out his approach today. There goes Basit running away into Saki Pandya. Again, just tries to go for the heave towards the onside. But a shape up and out swing could be seen. As we have seen for the last 2 days, it has been pretty overcast conditions. So it was a good toss to win by the captain, Sahil Shafi of Sarkar 11. As he just won the toss quickly, he decided to just try and go for the bowling first. Saki Pandya, he will show his normal aggression. Naturally, he's an aggressive player. He will absolutely try to go big and bang in the power play. Waits again, last time in this over. There he goes, gives himself room. That's gone. Absolutely, that's gonna land. Oh, can you believe it? That's gone over the top structure of that pavilion. That is a bang connection from the Saki Pandya. What a start to the innings of Sky Stars Budgam. They're dozen for no loss, and we're done with the first over. Saglan, what do you reckon? The moment we talk, the ball connecting the ball, it knew only one way, that was to go over that pavilion structure for half a dozen. बिल्कुल कमाल का स्ट्रोक इसी शैली में खेलते हैं। अगर हम यहाँ पे साकी पांडे की बात करें और कल ही अगर हम गनी मेमोरियल स्टेडियम की बात करें, वहाँ पे 95 की पारी इन्होंने खेलती थी, लेकिन वो नाइट टूर्नामेंट था, तो उसी फॉर्म को कैरी करना चाहेंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत है। सिक्स स्टार्स बडगाम की टीम की अगर हम बात करें, बहुत बैक किया इस प्लेयर को क्योंकि रन्स नहीं बना पा रहे थे पिछले मैच की, बहुत सारे मैच की अगर हम बात करें, उस फॉर्म से जूझ रहा है। आज इनके लिए वो मौका बनेगा यहाँ पे अच्छी पारी खेलने का। साकिब पांडे और शिबिल लेफ्टी की जोड़ी मैदान में 12 बगैर किसी नुकसान के बहुत अच्छी शुरुआत मिली है। पहले ओवर में 12 रन बनाने में कामयाब हुए सिक्स स्टार्स बडगाम की टीम की अगर हम बात करें। आज उनको दावत दी गई थी बल्लेबाजी करने के लिए, और स्कोर की अगर हम यहाँ से बात करें वो है 12 बगैर किसी नुकसान के एक ओवर के समाप्ति के बाद। अब किसके हाथ में गेंद थमाएंगे और साहिल आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, साहिल आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। और साहिल की अगर हम बात करें, रिसेंटली कल उन्होंने बिजबिहारा में फाइनल जीता था, उसी मोमेंटम को कैरी करना चाहेंगे। और कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, वो कॉन्फिडेंस साफ तौर पे नज़र आएगा जो कल उन्होंने फाइनल जीता था, वही कॉन्फिडेंस अगर आज दिखाएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। Absolutely, confidence does play a crucial role in any format of the game you are playing. And Sakib Pandya is showing his confidence as he stroked nice yesterday. If we talk about out there in Gani Memorial Stadium, Rajouri Kadal Srinagar, and quickly captain Khalid Butt goes to the spin, and he brings in Sahil, the captain actually. There you go, driven in style, absolutely all along the carpet. Nice way to get out the mark. Are they coming back for two? No. Sakib Pandya, he was trying to come back for second, but he was denied by Shabil Lefty. Lovely way to get off the mark. And score goes to 13 for no loss. Talk about the approach of these two openers. If we talk about Sakib Pandya, absolutely he does stay on the power play, and if he does play all the overs of the power play, it's surely going to be massive for the opposite side. बिल्कुल, देखिए 10-20 रन जब बनाते हैं उसके बाद वो रैश शॉट जरूर खेलते हैं। कुछ मैच हमने वो देखा है। आज इनके लिए मौका हो सकता है एक अच्छी पारी खेलने का। वैसे साहिल की बात करें, वो चाहेंगे अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करें और टॉप ऑर्डर की अगर हम बात करें, यहाँ से विकेट्स हासिल करें पावर प्ले में। जितनी ज़्यादा विकेट्स आप हासिल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रह सकता है। Indeed, you need to pick wickets pretty quickly in the power play, especially the wicket of Sakib Pandya. You can't allow him to stay on the crease for maximum of the time. He is looking completely lethal, and beast mood is having. And this time keeps low, straight to the wicket keeper. And it's 13 for no loss. On the onside we could find a short fine leg. There he goes, driven, standing tall, on the rise, nobody moves. Such is the talent and potential we could find in that score. Lovely shot from Sakib Pandya, just a bit of a flight in the ball, and he's just gonna hammer and tongue. और बिल्कुल इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलते हैं, वो थोड़ा सा जगह बना के स्ट्रोक जरूर खेलते हैं। इनका पसंदीदा स्ट्रोक रहता है और उसी प्रकार के शॉट्स खेल रहे हैं, 17 बगैर किसी नुकसान के। और साकिब पांडे ने जो कल पारी खेली थी, वही इंटर दिखाते हुए नजर आ रहा है अगर हम यहाँ पे साकिब पांडे की बात करें। Indeed, he's carrying that momentum. Next ball, pretty close.
Off the back foot he goes, and he just pushes it back along, straight to the bowler. No runs. So far, it's a decent start. But we already know how great of a captain Khalid Butt is. There he goes! Straight as a tire! Oh! Carries all the way, waiting for the signal of the umpire. There he goes. He comes up with the signal. That's gone all the way. Elevation with the distance, but it looked a bit of a flat shot from Sakib Pandya. बिल्कुल दबाव बनाना चाह रहा है साहिल पे, क्योंकि पावर प्ले में 2 ही खिलाड़ी की प्रोटेक्शन थी जिसके सर्कल के बाहर है, तो उसका फायदा उठाना चाह रहा है यहाँ पे साकिब पांड्या, और अभी तक सफलता मिली है उसमें। ओवर का हुआ खात्मा 2 के बाद 23 बगैर किसी नुकसान के। शुरुआत बहुत अच्छी मिली है सिटी स्टार्स बड़गाम की टीम को। हालांकि उनको आज दावत दी गई थी कि आप बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो दिमाग में यही होगा कि 200 के आसपास कम से कम पहुंचना है। लेकिन अगर इस विकेट की बात करें, हमेशा बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहती है। Absolutely, you hit the nail on the head. If we talk about the wicket of Pulwama Stadium, it all most of the times it looks quite friendly for the batters. Very batting friendly wicket. But cricket never takes too much of time to just change the things, turn the tables on. It may be a topsy-turvy situation as the game progresses, but so far it looks great in control of Sky Stars Badgaon with the way approach is being showed and displayed by Sakib Pandya. He has hit 2 sixes and a boundary, and you could see that he's batting on 22 of 11. He's going at a strike rate of 200. Are we going to expect to get bowling change? No, it's Basit Butt who's going to continue. He has conceded dozen of runs in his very first over, and he gets ready. Round the wicket, he's going to go to the Shibby lefty first time. There he goes! Lovely shot! He got his nag of just dragging the ball from the up stump, and over Skrellig region the ball carried the distance, and Shibby lefty also looking in an aggressive mood now. देखिए शुरुआत बहुत अच्छी मिली है, इस बार लेंथ गेंद कर बैठे सीधे। अगर हम शिबी लेफ्टी की बात करें, और ये पसंदीदा शॉट रहता है। अगर हम इनके शॉट्स की बात करें, वो खींचते हैं ऑफ साइड से, वो शॉट लगातार खेलते हैं। अगर आप इनको खामोश करना चाह रहे हैं, 5th स्टंप के आसपास अगर गेंद करेंगे, जब वो बॉडी से थोड़ा सा दूर खेले, तब आपके लिए मौका बन सकता है। लेकिन अगर आप इस लेंथ पे गेंद करेंगे तो यही शॉट खेलेंगे शिबी लेफ्टी। Well, that's not the length you want to bowl to Shibby lefty. You got to just hit the length spot. You can't pitch the ball up. There he goes, turns it on the onside. That's a kind of a pull shot all along the ground. The ball dances and topples over the wideish mid-wicket region for another boundary. He's now looking in some confidence, knows that the man on the other side is dealing in boundaries. So why should Shibby lefty stay away? He started to deal in the boundaries. बिल्कुल छोटी गेंद ज्यादा कर रहे हैं, शॉर्ट गेंद ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ से नई गेंद है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करेंगे तो मदद आपको मिलेगी। अब जो स्लिपे खिलाड़ी थे उनको हटाया गया है, क्योंकि दबाव बना रहे हैं। शॉर्ट मिड विकेट पे अब खालिद गए हैं फील्डिंग करने के लिए, और वाइड का इशारा आएगा। ये सोच अच्छी है यहाँ पे गेंदबाज की। 5th स्टंप के आसपास गेंदबाजी करेंगे, वहां पे आपके लिए मौका बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ से पैरों पे गेंद करेंगे, फ्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा 4th स्टंप के आसपास गेंद करेंगे, वहां पे जो इन्होंने पहले शॉट खेला जिसपे छक्का है, वो शॉट खेलते हैं। Absolutely, you're gonna just hit the variations. You're gonna just hit the length ball as well. You bowl up, you are gonna be punished for boundaries. Once again, Basis runs away. Right arm round the stumps to lefty. Full toss. And he plays it straight to Sahil Sheffi, standing in the covers. No addition. The score looks on 34 for no loss. And talk about the run rate in the power play, when you just have more than 11 runs in the power play. And if the momentum just goes on, you definitely are just having 60 on the board in the power play. But all of a sudden, if a wickets goes on, things can change quickly. बिल्कुल अगर हम यहाँ से बात करें करंट रेट की, 14 के आसपास है। इंटेंशंस साफ तौर पे क्लियर नजर आ रहे हैं दोनों सलामी जोड़ी की। अगर हम बात करें शिबी लेफ्टी और साकिब पांड्या की, कुछ सोच विचार जरूर करना होगा यहाँ पे साहिल को कि किस गेंदबाज को लाना है और फील्ड सेट कैसी करनी है। ऑफ साइड की बात करें, जैम पैक्ड फील्डिंग आपको नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी इस गेंद पे, क्या कमबैक कर पाएंगे गेंदबाज या नहीं। और इस बार खूबसूरत हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब, बड़ी गैप थी वहां पे, और डीप एक्स्ट्रा कवर बॉल लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। इस बार विड्थ दी थी वहां पे, और सही नसीब दी शिबी लेफ्टी ने। इस बार विड्थ दी थी और साफ तौर पे दबाव महसूस कर रहे हैं गेंदबाज अभी। Absolutely, you can't bowl wide off the off stump, especially when you are pitching the ball up. Shibby lefty is always a very great customer on that line ball, and he has started to deal in boundaries so far. 15 off the over, and still 2 to go. It's 38 for no loss. Sky Stars, and driven again. You can see the power. It was a slower ball, some rolling of fingers over the ball. Still, it just crashed, is it?
through the covers, and no time the ball takes in toppling the fence for 4. उंगलियां फेरी जरूर थी, लेकिन वो एक्शन की अगर हम बात करें, अगर आप उंगलियां फेरना चाह रहे हैं, एक्शन आपका रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा रुका था, पहले बांप लिया था शेबी लेफ्टी ने, और क्या कमाल का स्ट्रोक खेला। पावर जनरेट करते हैं अपने शॉट्स में, और कुछ अरसे से हम शेबी लेफ्टी को देख रहे हैं, बिल्कुल अलग ही गेम में आप खेलते हैं। Absolutely, changed his game plan. You know, we probably just around a year ago we knew him is not just fitting and suiting T20 format cricket, but as a caliber of a Shabir Lafty, you surely can just fit to the changes he has made to the approach. अब बिल्कुल एडजस्टमेंट्स आपको करने होते हैं। इस बार फिर से उंगलियां फेर थी, वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से, साफ तौर पे दबाव नजर आ रहा है। सरकार अलवन की टीम पे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों सलामी जोड़ी की अगर हम बात करें। शबीर लेफ्टी और साकिब पांड्या एक ही इंटेंशंस के साथ खेल रहे हैं। विकेट की जरूरत है, वरना ये जो करंट रेट है इसी मयार का लग रहा है, आगे बढ़ी तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है। जितना ज्यादा विकेट्स लेंगे उतना आप खामोश करेंगे दोनों को। And we could see the approach of both the batters looking aggressive today. Maybe the plan of the team is just try go there and try to hit the bowlers right from the ball one. बिल्कुल देखिए विकेट बहुत अच्छी है, चाहेंगे 220 230 तक अगर पहुंचेंगे तो फिर आपके लिए बेहतर रह सकता है। चलिए आखिरी गेंद के साथ फिर से उंगलियां फेर थी, इस बार खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 43 बगैर किसी नुकसान के। साकिब नजीर, रऊफ मीर, आदिल काशरू, बॉय मीर, आसिफ रमजान और जाहिद लेफ्टी का भी अभी आना बाकी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ से, जाहिद नबी की बात करें, आज वो प्लेइंग उन्होंने कितना बड़ा झटका हो सकता है इसके सरगर्म के लिए। Talk about the real touch, the real performance and consistency of Zaid Nabi. Left-arm orthodox, one of the genuine bowlers of the Kashmir Valley. His inclusion not in the side, I guess it's surely going to make a big impact. That is why the planning of the side of Sky Stars Budgam is try to pose a score of more than 200 on the board, because leg is weak, you know, leg is missing. The leg we are talking about, it's all Zaid Nabi. The way he turns the ball, especially left-arm orthodox, you're going to have a safe score on the board. बिल्कुल, इसलिए चाह रहे हैं कि 10-30 रन अगर ज्यादा बनाएंगे तो इनके लिए बेहतर रह सकता है। लेकिन आज इन्होंने जाहिद लेफ्टी को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन जाहिद नबी और जाहिद लेफ्टी में बहुत ज्यादा अंतर है। जाहिद नबी काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं। जाहिद लेफ्टी भी उस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनका जो प्रवाह अगर हम बात करें जाहिद नबी की, वो आज अलग ही फॉर्म में थे। चाहे बिजबिहारा से जो उन्होंने फॉर्म पकड़ी थी, लगातार उसी फॉर्म में गेंदबाजी करते हैं। ललहार में भी उन्होंने गेम चेंजर का अवार्ड हासिल किया था, वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। तो आज देखने वाली बात होगी जाहिद लेफ्टी कैसे परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। I guess we are having a bowling change, another spin introduced. And if we look at the previous records, you know, the pacers have not been great. You know, the characters and options for the side you are playing for. Absolutely, this ground, you know, helps in boost the likes of spin attack. बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आप रन्स बना सकते हैं, पेस के सामने बहुत बार रन्स पड़े इस विकेट पे, लेकिन अगर आप मिश्रण करना जानते हो तो आपके लिए बेहतर रह सकता है। पहले विकेट पे टैप कर दिया है, स्लिप ऑन की तरफ तेजी करनी पड़ेगी और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। देखने वाली बात होगी किस गेंदबाज को तलब किया है। सज्जू आया गेंदबाजी करने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। आदिल जोहर आया गेंदबाजी करने के लिए, और आदिल जोहर चाहेंगे कि विकेट हासिल करे, और शेबी लेफ्टी और साकिब पांड्या चाहेंगे जितना ज़्यादा दबाव हम बनाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। Indeed, it's a very good start, knowing that it's power play in progress. Both the batters are looking at absolute touch, middling the ball, connecting the ball well. We have seen some gorgeous upstrokes played from both the characters. Shibi lefty now. Short third man in place. Backward point, straightish point, cover, extra cover and a mid-off. There you go, watchful. That's a copybook style, allowing the ball come and just stretching forward, pushing along. And any youngster who is watching Shibi Lefty playing this kind of a defensive shot, he needs to learn and needs to rectify his basics. और बिल्कुल स्वीप जरूर खेलेंगे, और वही से अगर हम आदिल जोहर की बात करें, थोड़ा बहुत लूप देना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत लालच दे रहे हैं कि आप ये देखिए स्वीप शॉट का हम जिक्र कर रहे थे और वही खेला है, और गेंद फाइनल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन खेले। ये अच्छा होता है जब आप सुपनर को टैकल अगर आप करना चाह रहे तो स्वीप शॉट बहुत अच्छा रहता I है। guess it's a wrong line. You can't bowl that line to the likes of Shibi Lefty. On his pants, all he just need to do is sweep it all along the ground for 4. It's very close to half century now. 48 for no loss. And this is called a decent start to the likes of Budgam. Next ball, very intelligent cricket. Switching on your plans, hitting a boundary on the previous ball, just playing in rotation on the second ball. So this shows why Shibi Lefty possesses that potential, character, temperament, all class. It just fits in all the occasions. हाँ बिल्कुल, देखिए और अगर हम स्ट्राइक की बात करें, वो आज अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं और स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे हैं। वो काफ़ी अच्छी सोच है शिबी लेफ्टी की, ज़्यादा डॉट गेंदें नहीं खेल रहे, उसे दबाव आता है। अभी हम स्कोर की अगर हम बात करें 49 पे पहुंचे, 3.4 ओवर की गेंदबाजी, और आप विकेट दे नहीं सकते इस बल्लेबाज को। सही नसीहत दी
डीप पॉइंट बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए और काफी ज्यादा समय था बल्लेबाज को शॉट खेले में और आज साकिब पांड्या अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं. And what a way to bring the first half partnership for 50. Just over number 4 in progress. And talk about Sakib Pandya. Is raining in boundaries. And this time works it on the onside. Just a single. And it's good cricket if we overall try to analyze it. If you just keep the strike for majority of the time, the batter on the other strike, the batter on the non-strike, it does feel a bit nervous because you can't keep the striker off your ball away from the strike for most of the time. बिल्कुल वो होता है. देखिए अगर आप यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करेंगे आपके पार्टनर पे भी दबाव नहीं आएगा. जो यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है, चाहे शबीर लफ्टी की बात करें या साकिब पांड्या की बात करें. देखिए शबीर लफ्टी भी अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं. ज्यादा डॉट गेंदें खेल नहीं रहे, इसलिए अगर हम यहाँ से बात करें साकिब पांड्या कोई रैश शॉट अभी तक खेला नहीं है. और साकिब पांड्या के इंडिविजुअल स्कोर की बात करें वो 28 पे पहुंचे हैं. ये परेशानी रहती है साकिब पांड्या की, जब 20-30 पे पहुंचते फिर एक रैश शॉट खेल के अपनी विकेट देते हैं. यहाँ पे देखने वाली बातों की क्या करेंगे. Well, it's absolutely his approach will be chucked today. Maybe he might have given some lessons by his team management. You got to have a control on your nerves. Just don't throw away your wicket as most of the times it does. Today is looking in absolute control. 28 of 14. Next ball on the pads, works it on the onside, straight to the mid wicket. It's good cricket being played, running all the way. And you're going to have the runs on every ball. That's what Sky Stars Budgam are believing at the moment, putting pressure on the opposite side right from the power play. Having 55 on the board, just fifth over in progress with both the openers and probably left and right in combination out there in the middle. You believe it's a bit of a role playing, just unsettling the line and length of the bowler. बिल्कुल लेफ्टी राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ गेंदबाजी करना और कैप्टन के लिए वो फील्ड सेट करना भी दर्द-सर होता है. इस बार खराब गेंद और शॉर्ट फाइन लेग पे कमाल की फील्डिंग. 3 रन जरूर बचा अपने टीम के लिए और तेजी के साथ एक और रन का इजाफा होता हुआ इसे 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा 56 बगैर किसी नुकसान के 4.2 के बाद. 56 for no loss. Sarkar 11 looking for a wicket, desperate for a wicket. They need to pick wicket very quickly if they want to just come back in this semi-final. You can't allow your opposite side to just go back. That is Sakib Pandya at his beast mode. Is it carrying all the way? I guess no. 1-2 bounces over the ropes it goes. Put another boundary to the man. And he's looking altogether in a different beast mood today. बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. वो फॉर्म साफ तौर पे नजर आ रही है. 60 बगैर किसी नुकसान के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते हैं. हमेशा सोच यही रहती है इनकी, ये शॉट पसंदीदा रहता है और दबाव बना रहे साहिल पे. 60 बगैर किसी नुकसान के, इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही मिल सकती है इसके साथ बडगाम की टीम को. It's 60 for no loss. There he goes. That's gone cracking. That's a cracking shot of Sakib Pandya. Back-to-back boundaries. And look at the body language of Sarkar 11. They're all, we could say wordless. They're expressionless. They're gloomy. The faces of all the fielders does sum it up. They're gloomy and feeling some impact and pressure on them. बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पे डाउन नजर आ रही है. देखिए यहाँ पे अभी गेम अभी भी आनी बाकी बहुत. इस बार फिर से विकेट दी थी और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लैश कर दिया गेंद को बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए. साफ तौर पे साहिल पे दबाव बना रहे हैं और अभी तक सफल हुआ है. 64 अगर हम यहाँ पे स्कोर की बात करें इन 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 68 बगैर किसी नुकसान के. हमने भी बहुत सारे मैच कवर किए. इससे अच्छी शुरुआत ओपनिंग की अगर हम बात करें अभी तक कभी मिली नहीं है जब से हमने मैच कवर किए. Well, most of the times we see hat-trick of wickets, but it's hat-trick of boundaries by Sakib Pandya. On the onside. Is it carrying? Oh, deviation, and the fielder slipped and skidded off in between the ball, wins the race and goes for 4th boundary of the over. What a lovely finish to the over number 5. It's 72 for no loss, and Sakib Pandya is going all massive, is going all hammering and tongs, and is going with something stylish out here in Sports Stadium, Pulwama. 72 for no loss after 5. What a decent start. It's just 5 away. What would be a glorious half century for the man. और बिल्कुल यहाँ से अगर हम बात करें 72 रन अभी तक बना चुके हैं इसके स्टार्स बडगाम की टीम. 5 ओवर के बाद आज खिलवाड़ हुआ है गेंदबाजी के साथ. अभी तक जो भी गेंदबाज आए उनके सामने प्रहार हुआ है और सफलता मिली है शबीर लफ्टी और साकिब पांड्या को. साकिब पांड्या 45 पे पहुंचे हैं. वैसे शबीर लफ्टी की बात करें
वो 25 पे पहुंचे, 11 गेंदों का अभी तक सामना किया। 72 बगैर किसी नुकसान की करंट रेट 14.40 के आसपास। अब नए गेंदबाज को तलब किया गया है, आकिब हबा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अगर हम फील्डिंग की बात करें, अभी भी 1 ओवर बचता है पावर प्ले का। 2 ही खिलाड़ी आप 30 गज के सर्कल के बाहर अभी रख सकते हैं, उसके बाद आप 5 खिलाड़ी को 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं, फिर वो आपके लिए वो प्रोटेक्शन हो सकती है। उसके बाद आप स्पिनर्स को ला सकते हैं। साहिल की अगर हम बात किया, अगर और कोई आपके पास स्पिनर हो तो फिर आप ला सकते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, आकिब को बुलाया गया है। फील्डिंग की अगर हम बात करें, सेम ऑफ साइड में जैम पैड फील्डिंग नजर आ रही है। एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट कवर और एक मिड ऑफ पे खिलाड़ी को प्लेस किया गया है। वैसे लॉन्ग ऑन लगाया गया है और शॉर्ट फाइले पे भी एक खिलाड़ी को प्लेस किया गया और डीप स्क्वायर लेग, ये खिलाड़ी 30 गज के सर्कल के बाहर आएंगे। 72 बगैर किसी नुकसान के। Last over of the power play, and it's one more change in the bowling. It's Akib Habba. And is it surely going to turn out Habibi today? Absolutely, his team needs a Habibi performance from the man. वैसा तो भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप कमबैक कर सकते हैं। बस एक विकेट की जरूरत है, फिर आपको वो रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। ओह क्या शॉट है ये, गेंद काफी ज्यादा दूर गई है और इस बार फिर से गलती कर बैठे। इस बार फिर से शेबी लेफ्टी के सामने अपने लेंथ गेंद की और आती दबा बनाना चाहिए ताकि सेटल ना हो। ये सोच मुझे अच्छी लगी इसके स्टार्स बडगाम की। I guess Sarkar 11 is absolutely forgetting the process of their thoughts. They're forgetting the train of their thoughts. And it looks not the side of Khalid, but probably if we talk about yesterday, the way they showed their approach in the Bijbara Premier League final against the legendary, iconic international cricketer of Kashmir, Mr. Parvez Rasool. If you have to analyze as a commentator, you believe this looks absolutely altogether a different side. बिल्कुल आज डिफरेंट साइड नजर आ रही है। यहाँ पे आप नए मैदान पे उतरे हैं तो यहाँ पे नए स्ट्रेटजीज के साथ आपको उतरना होगा। उसी स्ट्रेटजीज के साथ आप यहाँ पे नहीं खेल सकते। एक बार एक ऊंचा लेफ्ट स्ट्रोक, यहाँ पे आउट होने का खतरा हो सकता है और क्या कमाल का कैच पकड़ा है वहां पे। जितनी तारीफें की जाए उतनी कम और यहाँ पे सोचने वाली बात होगी क्या आउट है या नहीं। अंपायर के इशारे। We got a decision maybe changing. The spectators are showing that it's 6. They're showing it 6. They're showing it 6. We have to wait. We have to wait and just check the decision of the umpire. Shebi Lefty, hold on. Don't leave the crowd. Rather ground. You can't leave the ground. You have to wait for the decision of the umpire. But talking about the catch, it was wonderfully just held on. But ultimately, we have to wait for the decision. And if it is a catch, if it is a safe catch, you got to say this is spectacular one. बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। वहां पे चेक किया जा रहा है कि क्या वो सही से कैच पकड़ा है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शेबी लेफ्टी ने इस बार फिर से वो प्रहार करना चाह रहे हो, लेकिन लगातार वहां से सिग्नल सारे छक्के के अंपायर के इशारे का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। Well, you have got only one option. It's a spectator's option. If they are signaling it's a 6, I guess umpire has to stand for the same. But even though we are optionless, we're helpless. We can't just give the proper scenario, proper scenes. Maybe just touching the ropes. But that is up to the umpire what decision he goes for. But ultimately, Shebi Lefty has to not leave the ground. और बिल्कुल आप यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या डिसीजन आएगा। अभी अपनी पोजीशन पे जाएंगे तब डिसीजन देंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे वो आपका बेहतर रहेगा। जितना आप डिले करेंगे फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत लेट जरूर हुआ है अगर इस मैच की बात करें। Fielder's call can be absolutely very important at the moment, but never your opposite side will just believe the call of the fielder because your opposite, you are playing opposite to each other. हाँ ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल फील्डर्स कॉल पे भी क्या जाएंगे वहाँ पे अंपायर अभी लगातार मशवरा कर रहे हैं और डिसीजन क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। जब अपनी पोजीशन पे जाएंगे तभी तो डिसीजन देंगे वहाँ पे, और ये देखने वाली बात होगी क्या डिसीजन आएगा। लगातार अभी भी समय ले रहे हैं वहाँ पे कि क्या डिसीजन आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ से प्रयास तो अच्छा किया था, चाहे वो क्लीनली कैच पकड़ा या नहीं वो तो अलग की बात है, लेकिन जो प्रयास किया था, जो एफर्ट लगाया था वो कमाल का था। That was a great effort, absolutely very great effort out there at the deep square leg region. It was Shebi Lefty's shot, but ultimately we still are waiting for the decision of the umpire. Unfortunately, we haven't got all the advanced technological facilities available. And we could see Adil Kachra also approaching to the ground. We're waiting for the signal of the umpire. Even though spectators signaling that it's a 6. We are not done with the decision. Not done with the decision yet. Still, it's pending. The decision is about to be made.
And that's a problem out here in Kashmir, and what we believe on, even though spectators most... Oh, there you go! Most of the spectators are displaying it's a 6. Most of the spectators are saying it's a 6. So what is going to be the decision of the umpire? And now it's going to be another fellow commentator. It's going to be Imu. And let's find out what he has to say for the decision. शुक्रिया बाबा, और सेकलेन आपका करना चाहेंगे। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है, और जिस प्रकार से वो प्रयास किया था क्षेत्ररक्षक ने, और क्या वो कैच मुकम्मल किया है, तो कहीं ना कहीं एज ए एम्पायर आप सबसे पहले वो फील्डर को बिल्कुल उससे बिल्कुल बातचीत करना चाहोगे, और कहीं ना कहीं वो स्पेक्टेटर्स वहाँ पे इशारा करते हुए कि ये छक्का है, और कई स्पेक्टेटर्स यहाँ पे वो उंगली हवा में खड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो जो अंपायर, वो एक बेहतरीन सोल्यूशन यही रहता है कि अगर आप जज नहीं कर पाते हो किसी भी कैच को जो डीप बाउंड्री पे लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप वो फील्डर्स कॉल पे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी जानने वाली बात रहेगी, हालांकि अभी भी डिसीजन आना पेंडिंग है। क्या यहाँ पे नताइज इस कैच के, क्या ये कैच करार दिया जाएगा, क्या ये छक्का करार दिया जाएगा? क्या बाबा ये गेंद फिर तो अगर ये कैच नहीं है तो फिर तो ये छक्का मेरे ख्याल से होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे वो कैच लिया था क्षेत्ररक्षक ने, तो कहीं ना कहीं वो रोप के अंदर और बाहर कर रहे थे, तो अब बिल्कुल अगर ये कैच नहीं तो ये छक्का दिया जाएगा। Well, absolutely, and it will be decided and it will be called as a 6 to Chevy lefty. But at moments when you know that you have got not a proper witness, you got to just listen to the crowd over here, because the crowd is neutral. They're not supporting any local team over here. It's absolutely neutral by the crowd over here. You got to just listen to them. You got to just have faith in them, because at moments when you are not having any option over here in local cricket of Kashmir, you got to just have the same. बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और बाबा जो आपका ये कहना है कि वो जो क्राउड की मैं बात करूँगा, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर किसी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए तो नहीं है, लेकिन शायद क्राउड को इंट्रोड्यूस कराना इस डिसीजन में मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं रहता है। और फिर भी दूसरा प्लस पॉइंट ये मैं दोहराना ज़रूर चाहूँगा यहाँ से कि अगर वो कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे अंपायर को लगता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है बल्लेबाज को जाएगा वहाँ पे। यहाँ तो आपको सीधा फील्डर्स के साथ बात करना है और तब जाके कोई डिसीजन आपको देना है, और यहाँ ही आपको लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट है, तो शायद वो प्लस पॉइंट बल्लेबाज के लिए हो सकता है। और अभी भी यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है, क्या यहाँ से वो आउट करार दिए जाएंगे, क्या वो छक्का घोषित किया जाएगा, अभी भी कहना मुश्किल रहता है। हालांकि दोनों अंपायर्स एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आदिल काशटू भी बिल्कुल टीम के कप्तान है, तो कुछ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं बाबा। लेकिन क्राउड की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, बिल्कुल ऐसे परिस्थितियों में अमूमन मैदानों में आप क्राउड को बिल्कुल बीच में पाओगे, लेकिन एक बार फिर हेड्स अप करना चाहूँगा पुलवामा के क्राउड को, जिस प्रकार से वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अभी भी वो रोप के बाहर वहीं से इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो रोप के अंदर अभी भी वो आने की जहमत नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अभी भी यहाँ से, जैसे कि मेरे फॉलो कमेंटर यानी सेकलैन बता रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके आप डिसीजन पे जाइएगा कि आपको डिसीजन क्या देना है, एज ए एम्पायर आप क्या डिसाइड करते हो। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरह से आप जाके वो 6 स्टार के खिलाड़ी और उनके साथ साथ कई जो वहाँ पे उस ओर जोश होता है, वो बीच मैदान की ओर आ रहे हैं। और जो ही हम वो बात कर रहे थे, जो हम वो सलूट करने की बात कर रहे थे बाबा। Absolutely. Now I could sum it up by one word. It's rumble and bumble now out here. The massive crowd coming into the ground. But ultimately, just talk about the umpire's decision. It should not have been taken to the deep. It could have come for your decision ultimately. And I guess Chevy lefty has been declared out. And we have to wait for the same. Is he walking back? और बिल्कुल देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें, डिसीजन आपको जितना जल्दी हो सके उतना आपको डिसीजन लेना होगा। यहाँ से देखिए, या तो आउट या तो नॉट आउट, दो ही डिसीजन आप दे सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हुआ है इस मैच में। मुझे लगता है अंपायर्स को जितना जल्दी आपको डिसीजन लेना है, या तो आप आउट दीजिए वहाँ पे, या तो आपको नॉट आउट देना है। दो ही डिसीजन देने हैं, लेकिन इतना ज़्यादा समय आपको लेना नहीं है। देखिए, यहाँ पे उतना समय होता नहीं है, ऑलरेडी आप थोड़ा सा लेट है। मुझे लगता है ये ज़रूर सोचना होना चाहिए यहाँ से। Now you could see at the screens, it's creating mess. It's messy. It's very, very messy. Well, ऐसा बाबा, ऐसा लग रहा था कि शायद शेबी लेफ्टी जो है वो खुद चले गए थे और वहाँ पे उसको वापस लाया जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अगर मैं कहूँगा तो क्रिकेट के लिए,
देखो एज अ प्लेयर अगर Well, we आपको know personally should be lefty. Yeah, And he's if he's being declared out by the umpire, he will not come by himself Argue. back. He will not- Absolutely. he will never argue He with will that never argue. He is a cool, calm person. He is down to the earth personality. But ultimately, if you are being declared out, but it's the public, it's the people, they are pushing back Shibby Lafty to go back again to the ground and take a strike. But we have to wait still. It may take some moments to find the proper results. बाबा बिल्कुल मेरा यही मानना है कि ये वो स्थिति है कि जहाँ पे हमारा लोकल क्रिकेट जो है लैग कर रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि वो क्राउड का और केवल आज इस मुकाबले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आप काफ़ी मुकाबले हमने भी देखे, आपने भी किए हैं, सकलैन भाई ने भी किए, और कहीं ना कहीं बिल्कुल ये चीज़ें देखकर फिर वो क्रिकेट की तौहीन में मानता हूँ। यहाँ पे अंपायर का जो भी फैसला होता है वो उसको स्वीकार किया जाता है। हालांकि शिबी लेफ्टी उस प्रकार के वो बल्लेबाज है जो बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर अंपायर की उंगली हवा में होगी तो बिल्कुल वो बिना कुछ बोले वापस डगआउट की ओर जाएंगे। हालांकि ऐसा लगा था कि वो डगआउट में वापस चले गए थे, लेकिन वहां से अब दोबारा से और शिबी लेफ्टी हमें बीच में नजर आ रहे हैं। Absolutely, Emu. We got to just listen to the captain's consent as well. We know Khalid Butt as a captain. We know Khalid Butt as a player. We know what character he possesses. If he shows his consent, he may bring him back to just try and just retain the strike. But still, we are not pretty aware about the fact what the decision is going to be made over there. And we're finding Shibby Lefty back on the ground as well. So overall, now we can see that the crowd is being just taken off from the center, and we're expecting the play to resume. हाँ बिल्कुल, अब जितनी जल्दी ये मुकाबला शुरू होगा तो कहीं ना कहीं उतना इस मुकाबले के लिए बेहतर, और साथ साथ जितने भी श्रोता घर बैठे बैठे, हालांकि ग्राउंड में जितने भी श्रोता मुकाबला देखने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो उनके पास वो पूरा दिन रहता है। लेकिन आप उनका भी सोचिए जो बिल्कुल घर बैठे बैठे अपने ऑफिस में ये मुकाबला एंजॉय करते हैं और वो काम के दौरान ये मुकाबला देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे अब सरकार जो है, सरकार की सेना बिल्कुल मैं कहता हूँ पूरी तरह से बीच मैदान में आपको नजर आएगी। ग्राउंड को अब हटाया जा रहा है और संभवतः ऐसा लग रहा है कि शिबी लेफ्टी दोबारा से वापस मैदान की ओर। I don't know whether you agree with me or not. I got Saklan with me as well. When you know we have not got proper advanced technologies, we got one best judge over here, that's only the spectators. When they are signaling it's a 6, why take late? Why take late in just giving that decision against Shibby Lefty? Crowd turning out to be the best judges of that choice over here. They're signaling it's a 6, so I guess umpire should listen to them and call it as a 6. अब बिल्कुल अगर देखा जाए तो अगर आपके मन में वो दुविधा रहती है कि गेंद वो कैरी की है वहाँ पे वो फील्डर ने या गेंद 6 रन के लिए चली गई है, तो अगर आप स्पेक्टर से भी बात करते हो, उनका भी इशारा वो छक्के का आता है, या फील्डर से भी आप बात करते हो, तब जाके अगर आप मुतमईन रहते नहीं हो इस चीज़ से कि ये फिर जो भी आपके जहन में आता है तो वो डिसीजन आप दीजिएगा। और बाद में वो देखा जाता है कि क्या वो खिलाड़ी उस डिसीजन को बिल्कुल मानने के लिए तैयार है कि नहीं है, वो अलग एक मसला है। लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा सा लेट किया है वहाँ पे एम्पायर ने। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर अंदर या तो आपको 40-50 सेकंड के आसपास ही वहाँ पे डिसीजन, या तो छक्का या चौका, और गेम आगे बढ़ती। लेकिन जितना आप समय लेते फिर बहुत सारे कंट्रोवर्सी, छक्का चौका फिर बहुत ज्यादा बीच में आ जाते तो फिर अच्छा नहीं होता है। Talk about the rhythm of the players as well, the way the batsmen were playing, the way bowler was bowling. Ultimately, everything has been distracted now. It seems now that the game is to be just started right from the first approach, and overall, it's not good for the cricket out here. बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमति रखता हुआ कि जो मोमेंटम चाहे मैं दोनों टीमों की बात करूं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जब वो बीच में आप वो 5-6 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो कहीं ना कहीं उससे वो जो मोमेंटम जो है वो बिल्कुल वो टूट सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे कि बाबा हमारे अभी बता रहे थे कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी नहीं है कि हम जाके वो थर्ड एम्पायर को ये डिसीजन जो है रेफर करें, लेकिन वो स्पेक्टेटर्स का काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान है। Now it's all sorted. We call the split has been done. Shibby Lefty is striking again. And we guess the 6 runs have not been added, are they? No. We still have to wait. It was second 6. And it will be 84 for no loss. And Akib Habba has gone for plenty of his first 2. Shibby Lefty is batting on 37. Still we have to wait. There he waits again. Looking on the upside. Short third man in place. Backward point, straightish point, cover point. I will take it, cover and a mid-off. A big gap between the mid-off and cover for that extra cover. Slightly over pitch on the upside. Shibby Lefty will crash him through.
and the crowd is roaring a lot. It's absolutely roaring a lot, and it's all set. Still, it's taking a bit of a moment. And you just need to be off the crowd. You don't need to listen. I guess it's a dead ball that has been signaled by the umpire. That's why the 6 runs not have been added to the total. So we have to agree with the Dame. Umpires decide it's a dead ball. So once again, should be lefty on the strike. There you go, driven on the upside, on the rise. Straight to the mid-on, and they're through for a single. और बिल्कुल एक और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर है 79 बगैर किसी नुकसान के 5.2 ओवर की गेंदबाजी पे तक हुई। और स्टार्ट की अगर हम बात करें बहुत अच्छा मिला है इसके स्टार्स बडगाम की टीम को। साकिब पांडे की बात करें 45 पे खेल रहे, 19 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया। शबीर लक्टी 32 पे खेल रहे, 13 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया। इसके स्टार्स बडगाम ने आज शुरुआत इनकी बहुत अच्छी हुई है, चाहे पिछले 5, 7, 8 मैचेस की बात करें, ओपनिंग की बात करें, आज बहुत अच्छी शुरुआत मिली और आड़े हाथों लिया है सरकार उनकी गेंदबाजों को। They can't get better start than this. Still power play on. It's 79 for no loss. That is a massive start to the power play. And what do you reckon at the moment? I guess the captain of Sarkar 11 must be a bit disappointed after winning the toss and asking the opposite side to bat first. It's turning out to be a bad decision. बिल्कुल बाबा, इस चीज़ की मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि पुलवामा में अगर देखा जाए, भले ही वो विकेट जो है बैटिंग पैराडाइज बिल्कुल मानी जाती है, लेकिन वो चेज़ करना मुश्किल रहा है। अगर मैं बात करूँ इस लीग की, और कहीं ना कहीं अब तक जितने भी टीमों ने चेज़ किया है तो वो मुश्किल रहा है। और यहाँ पे वो अच्छा खासा टास, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सरकार 11 के कप्तान ने जीता था, लेकिन वो गेंदबाजी और फिलहाल एक मजबूत पोजीशन में, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 6 स्टार बडगाम नजर आती हुई 79 बिना किसी विकेट के नुकसान पे इस बार लाजवाब, बेमिसाल और ये गजब की बल्लेबाजी। साकिब पांड्या आज उसी लय में बल्लेबाजी करते हुए जिस शैली के वो बल्लेबाज है और जिस कारी के लिए उसको अमूमन पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा जाता है। बाबा, Well, I guess it's old Sakib Pandya, old vintage Sakib Pandya. He is back with the bang. What a natural stroke player he is. 49 of just 21, it's just one shot. What would be a glorious half century, knowing that it's a semi-final number 2. You win, you are the finalists. You lose, you pack your bags back home. बिल्कुल एक क्रूशियल मुकाबला है। अगर हम यहाँ से बात करें इस ओवर के बाद बात करेंगे उसका। इस बार खेला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए और इसी के साथ यहाँ पे निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, आज अलग ही मूड में नजर आए हैं। Well, absolutely looks in a mood. I guess his mood is switched on. And we know that it may be switched on, but look at the scenes, look at the gestures for Sakib Pandya, and it deserves a real round of applause from all the people and from all the supporters over here. बिल्कुल, कल नाइट टूर्नामेंट में 95 रन बनाए थे और आज निस्फ सेंचुरी और क्रूशियल मुकाबला था। सिके स्टार्स बडगाम की टीम पे बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे कि आप इनको क्यों खिलाते नहीं हैं, लेकिन वो प्रूफ किया है साकिब पांड्या ने कि किस शैली के खिलाड़ी हैं। He deserves a place in every cricket match you play. Next ball, even though no proper connection, and I guess it's in the gaps. It's a very quick outfield, it's electrifying, and the ball goes to the fence for 4 runs. Look at this over, and it's absolutely gone for plenty. I guess we have got around 17 runs off the over. As our fellow commentator Imtiaz says, he says the software has been updated for Sakib Pandya. बिल्कुल वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। 93 बगैर किसी नुकसान के, अच्छी शुरुआत और आपको क्या मिल सकती है पावर प्ले में। अब यहाँ से एक कंटेस्ट अच्छा रहेगा क्योंकि आप 5 रन की प्रोटेक्शन थी जिसके सर्कल के बाहर रहेगी। अगर आपके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, मुझे लगता है उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। Well, talk about the bowling side. It looks completely temporary. It looks ordinary. No spin, no proper attack, no proper aggression, no close-in fielders, no proper captaincy. I got to say, is it overconfidence? But having a victory over there in Bijbara Premier League yesterday, they're taking the game lightly. But you disrespect the game, it's gonna disrespect you badly. बिल्कुल, देखिए हमेशा नया दिन होता है, नया मुकाबला होता है, नई स्ट्रेटजी के साथ और नई टीम के साथ आपको सामने उतरना होता है। आप उसी स्ट्रेटजी के साथ हमेशा नहीं जीत सकते। यहाँ पे सोच विचार करना होगा सरकार की टीम को कि किस स्ट्रेटजी के साथ हमें यहाँ पे उतरना है, फील्डिंग कैसी सेट करनी है और गेंदबाजी किस लाइन लेंथ पे करनी है इस विकेट पे। Absolutely. And let's find out. Akib Habba
He bowled just one, he got for plenty. 21 he conceded, courtesy one and only. Software updated Sakib Pandya. और हमारे जो फेलो कमेंटेटर है इमू भाई, उन्होंने कहा कि विकेट अलर्ट वो दे रहे हैं इस ओवर में. देखने वाली बात होगी, सही होगा. Well, it's wicket coming for your side. It says it's a wicket alert. In the meantime, are we expecting a bowling change? Power play done, fielding restrictions are over. The fielders are now dispersed. It's going to be right arm round. Shibil lefty waited, and he just guides the ball down to the gully region. No addition to the total. And most of the times you see these situations in the power play, you does finish at a very strong position. हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है. इस बार जगह बना के गैप में स्ट्रोक खेला है. जितनी तारीफें करूँ उतने काम. मुझे लगता है शॉट ऑफ द डे, क्योंकि गैप में खेला है शॉट. वेट कर रहे थे बैकफुट पे, और कमाल का स्ट्रोक है ये शिबी लेफ्टी के बल्ले से. And it won't be wrong if you call it a better late cut, just bisecting the place at the point at the gully region by Shibil Lefty. And talk about the approach of Shibil Lefty. It looks a different, classy. It looks classical today. बिल्कुल आज अलग ही मूड में नजर आ रहा है. 36 पे खेल रहे हैं, 15 गेंदों का अभी तक सामना किया है. स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है. इस बार फिर से जगह बना के स्ट्रोक खेला है डीप पॉइंट की तरफ. 1 रन 2 रन के लिए जा रहे हैं वहां पे. थोड़ा सा फंबल हुआ और उसी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल किया है. शानदार रनिंग मिड विकेट दोनों बल्लेबाजों की यहाँ पे. Just 97, rather 98. It's 99. It's one short of 100 if we talk about Sky Stars Budgam. And after a very long time, we find this very opening partnership going bang. बिल्कुल, क्या 100 की पार्टनरशिप यहाँ पे लगेगी या नहीं, यहाँ पे देखने वाली बात हो. क्या वो पैड पे शायद गेंद लगी या थाई पे शायद गेंद लगी, लगने के बाद शॉर्ट फाइनल की तरफ गई. रन बनाने का कोई मौका नहीं. 99 बगैर किसी नुकसान के. अभी तक 100 की अगर हम ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें, वो कभी लगी नहीं है जब से हमने मैच कवर. लगभग 5-10 मैच हमने कवर की. क्या लग पाएगी या नहीं? Well, absolutely. You will have to wait for one more run. It's Adil Zahoor into his second. And he sweeps it nice. There is a protection. And it's a 100-run partnership for the first wicket. And what a moment to have, knowing that it's all-important semi-final. And you can't get better start than this. And right from the first ball, the way these two just entered the center of out here Sports Stadium Pulwama, they looked absolutely great with the touch. और 41 बॉलों में ही इन्होंने 100 रन्स की पार्टनरशिप लगाई है. क्या बल्लेबाजी रही है, क्या इंटेंट रहा है, और क्या अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ दोनों खेल रहे हैं. 100 बगैर किसी नुकसान के 6.5 के बाद इस ओवर में थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी की आदत जोन है. Slugs, and go and gone. That's gone, I guess, after a bounce to the apple orchard. I guess it's getting ready to harvest the apples over there. बिल्कुल ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है. आज मौसम भी वैसा ही समा बांधा है इस खिलाड़ी ने. यही होता है. देखिए आज ये पारी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस पे सवाल बहुत ज़्यादा उठे थे. साकिब पांडे की फॉर्म पे बहुत आलोचनाएं हुई थी, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन आज प्रूफ किया. When you are criticized as a batsman, it's only one option left for you as a batter. It's your bat that can, shut the critics. And I guess the better moment, better situation for Sakib Pandya, and I guess the critics might have been shut off their mouths by this approach. बिल्कुल, जो अप्रोच दिखाया है, जो बल्ले से ही तो काम किया है. देखिए ज़्यादा बोलते नहीं है, ये काम बल्ले से ही करते हैं. अब यहाँ से साहिल को सोचना होगा. साहिल को सोचना होगा कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है. यहाँ पे विकेट तो ज़रूर चाहिए यहाँ से. अगर विकेट हासिल नहीं करेंगे तो इसी इंटेंट के साथ रन बनाएंगे, फिर आपको 230, 240 से 250 का भी लक्ष्य मिल सकता है चेज़ करने के लिए. फिर आपको परेशानियाँ हो सकती है, क्योंकि आप चेज़ करेंगे तो आपके दिमाग में रिक्वायर रेट ज़रूर होगी. क्योंकि अभी जो साकिब पांड्या और शिबी लेफ्टी खेल रहे हैं, इनके दिमाग में वो रिक्वायर रेट है नहीं, इसलिए फ्रीली खेल रहे हैं. Talk about the current run rate. It's over 15, and if they just go on with the same, it's 300 that can be posted on the board. And if you just have to just 300 chasing, I guess it's going to be just climbing the Mount Everest to kind of an approach for Sarkar 11. बिल्कुल देखने वाली बात होगी कितना बड़ा लक्ष्य मिलेगा आज सरकार 11 की टीम को. सरकार 11 की टीम की बात करें, खालिद भट्ट वहाँ पे खेलते हैं टॉप में, वो भी स्टार्ट देना जानते हैं. लेकिन जब आप एक अच्छा स्कोर बनाएंगे, फिर अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो आपके लिए मौका हो सकता है. लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा डाउन नजर आ रही है. एक विकेट की तलाश है, लेकिन वो विकेट नहीं मिल रही है यहाँ पे सरकार 11 की टीम को. And who just brings them that wicket? They desperately need a breakthrough. They need some partnership breaker. And I would remember, if we talk about Indian cricket team, Mahendra Singh Dhoni would bring Suresh Raina or Rohit Sharma as a non-regular bowler. Let's try and see what
example and one option is left with Khalid, but is he having any non-striker? But it's Saju, the man who just broke the bones yesterday, the man who just absolutely bowled well, and he got better at Bijbihara Sports yesterday. बिल्कुल देखिए, अगर आपके पास सज्जू जैसा गेंदबाज है, जब आपके सामने प्रहार हो रहा था तो आपको चाहिए उनको गेंदबाजी करने के लिए पहले लाना था। अभी आपने उनको गेंदबाजी करने के लिए लाया है, लेकिन अभी ये 8वां ओवर है। अगर पहले लाते तो शायद ये प्रभाव डाल सकते थे, अभी भी डाल सकते हैं प्रभाव, लेकिन अभी दबाव इन पे होगा क्योंकि बल्लेबाजी यहाँ से बहुत आला हो रही है। तब आप विकेट हासिल कर सकते थे अगर हम सज्जू की बात करें, लेकिन कल बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन कल टर्फ विकेट थी। आज यहाँ पर विकेट अलग है, लेकिन आज जो बल्लेबाजी हो रही है वो कमाल की हो रही है। मोबाइल बिल्कुल ये अच्छा एक मुंह मानता हूँ मैं, बिल्कुल कप्तान खालिद बट दोहरा एक स्लिप के साथ अब गेंदबाजी करेंगे सज्जू, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो विकेट जो है बड़ी बेदर्दी से बिल्कुल सरकार 11 का खेमा और उनके समर्थक बिल्कुल यहाँ पे चाहते हैं क्या सज्जू वो विकेट दिलाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इस बार एक बार फिर पांड्या का पावर देखिए, पॉइंट के ऊपर से ये गगनचुंबी छक्का अपने नाम साकिब पांड्या का आज बल्ला बिल्कुल आग उगलता हुआ पुलवामा के इस खूबसूरत स्टेडियम में। सिकलन बिल्कुल, जब यूं ही थोड़ी सी विकेट दी और कमाल का शॉट खेला है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, लंबा चौड़ा छक्का। साकिब पांड्या अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं, फास्ट हैंड्स, जो भी शॉट खेले काफ़ी पहले ही गेंद की लाइन को पिक कर रहे हैं और इम्प्रोवाइजेशन करना चाह रहे थे वहाँ पे, और कोई भी इशारा नहीं आया पैर की जानिब से। तो साकिब पांड्या यहाँ पे स्ट्रेट बैट से तो अच्छा खेले, लेकिन अगर ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। विकेट कीपर कोई चोटिल नजर आ रहा है वहाँ पे। 26 गेंदों पे 71 बनाकर नाबाद। और अगर मैं शिबी लेफ्टी की बात करूँ तो वो भी अपनी अर्धशतक की और इन्हें आज 6 स्टार बड़गाम की जानिब से, बल्कि जैसा कि बाबा निसार और सेकलैन बिल्कुल द ऑफिशियल कमेंटेटर्स ऑफ 6 स्टार बड़गाम, उनका यह मानना है कि पहला वो शतकीय साझेदारी उनको देखने का मौका आज मिला, वो भी बड़े मुकाबले में। साकिब पांड्या फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन क्या बेहतरीन मौके पे फॉर्म पे वापस आए हैं। और फिलहाल सज्जू एक मरतबा फिर इस बार ऑन साइड की जानिब गेंद को धकेला, पीछे क्षेत्र चल के पहला रन तेजी से भागते हुए और दूसरे रन की मांग यहाँ पे लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हालांकि छक्कों और चौकों में आज बिल्कुल बातें करवाया इस मैदान को, और उसके साथ साथ रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए सेकलैन, जब जब वो मौका मिला है वो सिंगल को कन्वर्ट करना डबल में, और तब पीछे नहीं रही ये जोड़ी। और बिल्कुल लगातार स्ट्राइक रोटेशन की अगर हम बात करें, स्ट्राइक रोटेट भी काफ़ी अच्छी की है इस बार, खेला है गली की तरफ, रन बनाने का कोई मौका नहीं, 115 बगैर किसी नुकसान के। और क्या कमाल की शुरुआत मिली है। अब जो भी बल्लेबाज इसके बाद आएगा उस पर उतना दबाव होगा नहीं, क्योंकि बेस सेट करके रखी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल एक नींव रखी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से करीब वो एक 250 करीब या 250 पौने 300 तक के बिल्कुल स्कोर लिया जा सकता है। जिस प्रकार से लीजिए यहाँ पे जो स्लिप बिल्कुल तैनात की थी, जो अच्छा मुंह बिल्कुल दर्शाया गया था और साकिब पांड्या को जाल में फंसाया सज्जू। हालांकि काफ़ी देर की यहाँ पे सज्जू को इंट्रोड्यूस करने में, जैसा कि मेरे फेलो कमेंटेटर बता रहे थे कि बिल्कुल आपके पास उस प्रकार के गेंदबाज है जिसका कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल वो छठवें आसमान पे, क्योंकि कल बिजबिहारा प्रीमियर लीग में इस लीग में वो फाइनल का खिताब अपने नाम करना तो कहीं ना कहीं दर्शाता कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है एज ए गेंदबाज। लेकिन फिलहाल जो ही गेंद सौंपी अपने जादूगर गेंदबाज सज्जू को, तो वो विकेट यहाँ पे निकाल के दी है। साझेदारी यहाँ पे तोड़ने में कामयाब साकिब पांड्या वापस जाएंगे एक बेहतरीन इनिंग खेलकर पुलवामा के इस खूबसूरत स्टेडियम में। अगर देखा जाए वो तालियों से स्वागत, वो डगआउट खड़े होकर बिल्कुल यहाँ पे मान देते हुए साकिब पांड्या का, और क्यों ना दे बाबा, क्यों ना दे, जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी की है तो कहीं ना कहीं वो स्टैंडिंग ओवेशन तो बनती है। Absolutely, that man deserves a very, very big standing ovation, and he was receiving the same as he was approaching to the dugout. He has just set the foundation, just made the basics right, and it's all up to the rest of the batters to just change the real gaze, just go to the acceleration and try to put a massive and mammoth total on the board. And it might not be pretty difficult and challenging for Saqib Nazir, even though a promotion has been made. He has been sent ahead of Adil Kachru. What do you reckon? It's a good move, a brave move, a very bold move by Adil Kachru. बिल्कुल एक अच्छा मूव हो सकता है। साकिब पांड्या के आउट होने के बाद साकिब नज़ीर आया बल्लेबाजी करने के लिए। आज इनको प्रमोशन मिली है, 3 या 4 नंबर पे खेलते थे और काफ़ी मैचेस से वो इन प्लेइंग एलेवन में नहीं थे, लेकिन आज इनके लिए मौका हो सकता है अच्छी पारी खेल के। अभी यहाँ पे दबाव है नहीं, आज आपके पास दबाव है नहीं, आज आपके पास लाइसेंस टू किल द बॉल, क्योंकि जो बेस सेट की है यहाँ पे साकिब पांड्या ने और शिबी लेफ्टी ने, वो कमाल की बेस सेट किया उन्होंने। And the way Saju bowled yesterday in Bijbihara Premier League, you get to say that
it was a late decision by Khalid Butt introducing Saju. He could have introduced him a bit early, because if he had been introduced early as he did yesterday, the scenario could have been something different. बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट होती है। अगर आप इनको 3 या 4 चौथा नंबर ओवर करवा दे तो बेहतर रहता है। इस बार क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, लेकिन पीछे प्रोडक्शन मौजूद, तो अगर वहाँ पे विकेट हासिल करते तो फिर ये जो सिचुएशन अभी आपको 115 116 के आसपास, और इस बार ओवर थ्रू के एक और रन मिलेंगे वहाँ पे। दूसरा रन भी मुकम्मल किया है, अच्छी सेंसेस दिखाते हुए नजर आ रहे It हैं। won't be wrong if we call it's pressure speaking off. और बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कुछ शब्द दर्शाना चाहूँगा शेबी लेफ्टी के लिए। बिल्कुल हालांकि वो शुरुआत से अंत तक बल्लेबाजी आप करते हुए आप उसको देखोगे, लेकिन वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी फिजिकली वो कितने फिट है, और यही दर्शाता है कि एज अ बल्लेबाज जब आपके अंदर वो काबिलियत है वो सिंगल्स को कन्वर्ट करना डबल्स में, तब जाके आप आगे वो जो सफलता प्राप्त करते हो अपने लिए, अपनी टीम के लिए और अपने उन चाहने वालों के लिए। क्यों बाबा? हाँ बिल्कुल, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप स्ट्राइक रोटेशन की आप बात करें, उसके बाद आप बड़े पारी के लिए जा सकते हैं। स्ट्राइक रोटेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और शेबी लेफ्टी वो काम कर रहे हैं। साकिब नज़ीर क्या कुछ करेंगे, इन पे आज निगाह रहेगी, क्योंकि ये भी प्लेइंग 11 में ज़्यादा होते नहीं, अगर हम इसके साथ बढ़ इनकी बात करें, और आज इनको प्रूव करना होगा खुद को। Well, also he is going through some bad patches. First ball, it just cuts it beautifully, and the ball wins the race, topples over the fence for 4, and it won't be wrong if we say one Saqib goes off, another Saqib comes and joins the center. बिल्कुल ये एक अच्छा मूव यहाँ पे मानता हूँ मैं। बिल्कुल अगर मैं बात करूँ आदिल काशरू का, क्योंकि बखूबी जानते हैं कि किस तरह से आपने खिलाड़ी को ब्याह किया जाता है, जो आपका खासतौर पर मैच विनर प्लेयर रहा हो, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पे उसको भेजा है। हालांकि वो जो न्यू हुआ शुरुआत की बल्लेबाजों ने साकिब के साथ साथ शेबी लेफ्टी ने बिल्कुल बना के दी है, शायद इसके कारण साकिब के पास वो समय रहेगा, वो बिल्कुल यहाँ पे अपना समय ले सकते हो। तो यहाँ से एज अ बल्लेबाज जब इस प्रकार की स्थिति में आप बल्लेबाजी करने के लिए आते हो, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्म जो आप जिस फॉर्म के लिए आप तरस रहे हो, तो एक सुनहरा मौका आपके लिए उस फॉर्म में वापस आने का। हाँ बिल्कुल, आपके लिए मौका हो सकता है फॉर्म में वापस आने का। इस बार जोरदार अपील और उंगली फिजा में तीनों विकेट्स के सामने पाए गए। साकिब पांडे को प्रमोशन मिली थी आज, लेकिन आज कुछ नहीं कर पाए और शफल करके आए थे वहाँ पे, तीनों विकेट्स के सामने पाए गए। लगा ये बड़ा झटका सिकस्टार बडगाम की टीम को। यार बिल्कुल, जितनी जल्दी बाज बल्लेबाजी में प्रमोट किया था उतनी जल्दी वापस भी गया है बाबा, तो कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई बल्लेबाज खोना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे जब आपका वो दिन नहीं होता है, जब किस्मत आपकी साथ नहीं होती है, तो तब जाके इस प्रकार के नताइज आपके सामने होते हैं। फिलहाल साकिब आए और साकिब चले गए, और साकिब के फैंस बाबा सिकलन ये भी आप सुन लीजिएगा, साकिब के फैंस ये निदा लगा रहे होंगे साकिब अभी ना जाओ छोड़ के कि जी अभी भरा नहीं, लेकिन जी काफ़ी भर गया वो चौका जो लगाया था पॉइंट के ऊपर। और बिल्कुल साफ तौर पे वो नजर आ रहा है। Well, it reminds me of great, Bollywood songs in 90s. अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। और बिल्कुल वैसा ही कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, और दिल जल्दी भर चुका है। वहाँ पे साकिब नज़ीर की बात करें, आज भी कुछ नहीं कर पाए, अब आए हैं आदिल काशरू बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन यहाँ से मैं कहूँगा सरकार आलम का बहुत अच्छा कमबैक है। Well, absolutely, these things, in cricket, 20 format, you can absolutely finding this situation changing pretty quickly. And it is turning out to be a topsy-turvy situation. Now the tables have started to turn down, and Sarkar 11 have got the best opportunity to try and find the very things back in the quota. And we watch Adil Kachur approaching, and the confidence is all expressing on his face. Centurion a day ago out there in quarter-final at Green Park, Lilhara Premier League, Kakpura. And the same is to be expected today by his teammates. What a cricketer he is. He belongs to district Shopian, and is the Shan of Shopian. Shani Shopian, legendary, iconic Adil Ayub Malik, who is famous by Adil Kachru. He gets ready to face Sahil. Sahil has picked up a wicket as well. So spinners have now started to show some target. The full toss ball. Can't just pick the gap. And he will pick his things on. He just opens his account. A single to finish the ninth gone. It's 1, 2, 3 for 2. Shippy lefty just 7 off his half century. And in the meantime, let's try and find out some views of my fellow commentator, Mr. Imu Bhai. Imu, what do you reckon?
It's a good platform now set by Khalid Butt because he can turn the things back. All he just need to do is to march and maneuver his bowling options rightly. बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी की है बल्लेबाजों ने, तो कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल अभी भी मैं पलड़ा भारी मानता हूँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 6 स्टार बडगाम का, क्योंकि 9 ओवर में आपने 123 बनाए और साथ साथ वो 2 ही विकेट आप अभी गवा चुके हो। आदिल काश्र और शिबिर लेफ्टी की जोड़ी और शानी शुपियन और शानी कुलगाम, ये जो 2 बल्लेबाज है बिल्कुल अगर ये अपनी लय में यहाँ पे नज़र आए तो कहीं ना कहीं स्कोर जो करीबन मुझे अभी भी बिल्कुल वो 230-240 के करीब नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ से अब जाने वाली बात रहेगी कि जिस प्रकार से वो साझेदारी आपने तोड़ी, उसके बाद लगातार रेगुलर इंटरवल्स में आपने विकेट निकाल के दिया अपनी टीम को, क्या यहाँ से बिल्कुल इस प्रकार की गेंदबाजी आगे जाके देखने का मौका मिलेगा? सज्जू हालांकि सफल गेंदबाज वो ये गेंदबाज जिसने वो साझेदारी तोड़ी और साथ तब जाके वो साहिल ने दूसरे ओवर में यहाँ पे विकेट निकाली थी। लेकिन इस बार वो सुलाख स्वीप के अंदाज में पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक टप्पे के बाद गेंद को रोका जाएगा लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के साथ आदिल काश्र का खाता खुलता हुआ और सिंगल के साथ ही टीम का स्कोर 124, 9.1 ओवर की गेंदबाजी। और हमारे कॉम्बॉक्स में बिल्कुल वैली के बिल्कुल मोस्ट फेमस एंटरटेनर पुलवामा आए और जहान साहब से मुलाकात ना हो तो ये कहना बिल्कुल ये मेरे ख्याल से मुश्किल है। और जहान साहब को हम बिल्कुल इस ओवर में वो मौका देंगे, वो माइक उसके हाथ में हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल सज्जू एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार वो मेरी कट के ऊपर खेलने का प्रयास ऑफ स्टंप के बाहर जब भी गेंदबाजी हुई है शिबिर लेफ्टी को तब वो बिल्कुल फंसते हुए नज़र आए हैं। तो जान साहब आपका वेलकम करना चाहेंगे आज के इस मुकाबले में, जहां पे ये सेमीफाइनल का मुकाबला सरकार भिड़ रही है, 2-2 हाथ कर रही है 6 स्टार बडगाम के साथ। जी हाँ, लेकिन ना अगर बात करेंगे 6 स्टार बडगाम का, वहाँ से शिबिर लेफ्टी बेहतरीन स्ट्रोक, शिबिर लेफ्टी ने बेहतरीन इनिंग खेलकर मिजाज की इनिंग खेली। तो लेकिन सरकार की जो टीम है वो अच्छा टीम है, लेकिन ये हम कुछ नहीं कहेंगे, ये एनएचटी का खेल है, ये एनएचटी का खेल है। लेकिन जो एक टीम को जीतना है, एक टीम को हारना है सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल है। जो अगर आज जीतेगा तो मेरे हिसाब में लगता है कि हम शाम को ही फाइनल रखेंगे, कि यहाँ पे जब क्राउड रहता है ना ये कंट्रोल नहीं होते हैं, मेहरबानी करके ये क्राउड कंट्रोल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे लाइट सिस्टम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम शाम के टाइम ये फाइनल रखेंगे। लेकिन देखो अब अगर बात कहेंगे, अंपायर कहते हैं कि आउट है, लेकिन दर्शक कहते हैं नहीं छक्का है। लेकिन जब ग्राउंड में बीच ग्राउंड में आए हैं दर्शक, इस बीच आदिल काचरू स्ट्रोक लेना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए, बॉल के साथ बल्ला नहीं लगते हैं। शिबिर लेफ्टी जब तक विकेट पे है ना तब तक मुझे लग रहा है कि शिबिर लेफ्टी जब क्रीज पर है ना तो तब मुझे लग रहा है कि 200 के प्लस स्कोर होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इमू भैया मुझे लग रहा है कि 200 के प्लस हो जाएंगे। बिल्कुल जान साहब, अगर मैं आपकी बात करूं तो कहीं ना कहीं अब तक 127 रन जो है बोर्ड पे लग चुके हैं। और जान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, साकिब पांड्या का जो वो तूफान आया था और पांड्या पावर आज देखने को मिला था, वो करीबन 77 रन बनाए आज अपने बल्ले से, तो क्या विचार है आपके उस बल्लेबाजी के लिए? जी हाँ, साकिब पांड्या की अगर बात करेंगे, साकिब पांड्या तो बहुत हमेशा तेज तरीन खेलते हैं, लेकिन साकिब पांड्या ने आज कहरा मचाया था, लेकिन बदकिस्मती से आखिरकार वो आउट हो गया। लेकिन कहरा मचाया इस स्टेडियम की ग्राउंड में, लेकिन जब तक सामना करेंगे शिबिर लेफ्टी, इस बार शिबिर लेफ्टी ने बड़ा स्ट्रोक लिया, क्या फील्डर मौजूद, तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेते हुए आदिल काचरू को, शिबिर लेफ्टी आदिल काचरू को लाते हैं स्ट्राइक पे। तो शुपियन की शान आदिल काचरू, जब तक आदिल काचरू के अभी मुझे लग रहा है कि आदिल काचरू अभी फॉर्म नजर आ रहे हैं, लेकिन फॉर्म में वापस आए हैं आदिल काचरू। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो शिबिर लेफ्टी हालांकि पुलवामा से आते और आपके करीबी दोस्त हैं और उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार गेंदबाज के वहाँ पर जानिब खेला और एक बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे साहिल द्वारा देखने को मिली और रन बनाने का कोई मौका नहीं। जान साहब आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, शिबिर लेफ्टी 47 पे नाबाद, इन्हें 3 रन अपनी अर्धशतक निसफ सेंचुरी से दूर, लेकिन इस बार वो कदमों का इस्तेमाल ऑन साइड में खेला, काचरू ने ऑन साइड से खेला, तब तक 1 ही रन लेते हुए आदिल काचरू ने, शिबिर लेफ्टी केवल 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से। लेकिन शिबिर लेफ्टी को चाहिए विकेट पे ठहरी है, ये पुलवामा की आन, पुलवामा की शान शिबिर लेफ्टी, जो कि
इसको लेफ्टी कहते हैं, लेकिन मैं खुदा से अपील करता हूं कि इसको आईपीएल में सिलेक्ट होना चाहिए, इसको सिलेक्ट आईपीएल में होना चाहिए कि जान साहब। जैसे जैसे ताबड़तोड़ हिटिंग खेलते हैं शबी लेफ्टी, इसको मैं खुदा से गुजारिश करता हूं कि इसको आईपीएल में खेलना इसको आईपीएल खेलना सिलेक्ट चाहिए। बिल्कुल। अब 48 पर पहुंचे, टीम का स्कोर 130, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.4 ओवर की गेंदबाजी, और आप जाके वो आदिल काशरू सामना करेंगे इस गेंद का, और पीछे हटकर गेंद को खेला है लांगा के जानिब से, ने गेंद को उठा दिया है, गेंद वहां फील्डर मौजूद, तब तक आदिल काशरू ने रन लिए, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। शबी लेफ्टी को चाहिए केवल 2 ही रन अपने हाफ सेंचुरीज के, स्कोर बढ़ता हुआ 1-3-1, स्कोर तो अच्छा है, लेकिन एक बात कहूंगा कि शबी लेफ्टी को सिर्फ 2 रनों की जरूरत अपने हाफ सेंचुरीज को। इस बीच शबी लेफ्टी ने गेंद को खेल दिया है, गेंद सीमा के बाहर 4 रन, इसी के साथ सेंचुरी शबी लेफ्टी के, 50 हाफ सेंचुरी। शबी लेफ्टी अब बल्ला दिखाइए, शबीर साहब अब बल्ला दिखाइए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से ये बढ़िया ग्राउंड है, प्लोमा की आन, प्लोमा की शान, शबी लेफ्टी। तो जान साहब, क्या आपका ये मानना है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है? आप क्या इसके बारे में? जी हाँ, जब मैंने कहा नासिर भैया, जब मैंने कहा कि ये एनएचटी का खेल है, जब तक शबी लेफ्टी विकेट पर ठहरता है तो मुझे लगता है कि कहराम मचाते हैं टीम को। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना स्कोर यहाँ पे खड़ा होगा? मुझे लग रहा है कि जब दो खिलाड़ी आदिल काशरू और शबी लेफ्टी अगर विकेट पे बैठेगा, मैंने कहा कि 200 की प्लस हो जाएगी, 200 की प्लस हो जाएगी। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात तो जान साहब का यहाँ पे अनुमान जो है काफ़ी सही है, क्योंकि 11 ही ओवर हो चुके हैं और 135 बोर्ड पे, और केवल 2 खिलाड़ी गंवाए हैं इस टीम ने। और आज टॉस की बात की जाए जान साहब, टॉस आज सरकार 11 ने जीता था, तो क्या आपको लग रहा है कि वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला शायद कुछ भारी पड़ गया यहाँ पे? मैं कहूँगा एक ही बात, जब इनने यशब्राड़ा में फाइनल जीत गया, इनने आज टॉस जीता, फिर बैटिंग क्यों नहीं किया, अपना बैटिंग क्यों नहीं किया? लेकिन इनको समझ है कि ये यशब्राड़ की टर्फ है, लेकिन ये टर्फ नहीं है, प्लोमा के स्टेडियम, ये प्लोमा स्टेडियम है, ये टर्फ नहीं है। इनको आज महंगा, अगर इनने आज सेमीफाइनल हार गए ना तो महंगा पड़ेगा इनको। तो बिल्कुल महंगा क्या, तो फिर तो यहाँ पे टिकट कटवेगी आज उनकी, क्योंकि ओ लीजिए कमाल का छक्का, आदिल काजरू के बढ़िया छक्का, इसी को कहते हैं आदिल काजरू। और मैं कहता ना, ये यशब्राड़ की तरफ नहीं है, ये पुलवामा के स्टेडियम है, ये टर्फ नहीं है। साहिल भैया ने आज टॉस जीता और पहले बैटिंग नहीं किया, पहले दावत दिया सीके स्टार बरगामा को, लेकिन अभी धुलाई पड़ता है इसका, बहुत गलत किया साहिल भैया ने। लेकिन आदिल काजरू देखो, आदिल काजरू फॉर्म नजर आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने बोला ना, मैंने एक ही बात कहा बाबा, मैंने एक ही बात कहा कि ये एनएचटी का खेल है। लेकिन अभी देखो शबी लेफ्टी, जी बिल्कुल, आदिल काजरू स्ट्राइक पे और शबी लेफ्टी अभी स्ट्राइक पे आए हैं, तो ओवर का समाप्ति हो गई। तो आपकी बात से बिल्कुल हम सहमति रखते हैं। जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज कॉम्बक्स में आने के लिए। तो ये 5-6 मिनट आपको देना ज़रूरी होता है, क्योंकि पुलवामा में आए, जान साहब से मुलाकात ना हो तो बिल्कुल ये असंभव है। और फिलहाल इस बार बेहतरीन तरीके से लीजिए, अब बाबा नज़र हटी और दुर्घटना घटी, और नज़र तो वो क्षेत्र से हटी थी, लेकिन दुर्घटना पूरे टीम पे घटती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पे वो 1 रन, लेकिन वहाँ पे वो चौके का इजाफा, और गेंदबाज खुश नहीं है, और वो चेहरा साफ वो स्टोरी बयान करता हुआ। हालांकि इस प्रकार की फील्डिंग आप करोगे तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के ऊपर क्या बीतेगी, अब बाबा मेरे से ज़्यादा शायद वो बयान कर सकते हैं। Well, absolutely. We can say it's absolutely suicide by that fielder over there. Next ball, dragging it from the up stump, running away. There's pace in the ball, and this time a better stop. Adil Kachru not interested for the second single. They will have to just convert it into a single only. It's 1-4-7 for 2. Shibby Lefty Remind, who came as an opener alongside Saki Pandey, is done with his half century, 57 of 30. And today he showed us all gestures and caliber that he is a great batsman when it comes to the strike rate. Next ball goes on to the back foot, allows the ball come close, plays it on the onside down to the long on.
Another single. But let's try and analyze the run rate. We still remember they were 15 runs per over, but still they're touching that 13. And with this, they may just cross 250, and it won't be. It will be a bit of a bad scenes for the sides of Sky Stars Budgam if they are not able to just touch that 250. बिल्कुल अगर यहाँ से 250 नहीं लगा पाएंगे तो फिर बहुत निराश होगी। स्टार्ट बहुत अच्छा मिला है, विकेट्स भी अभी सेव करके रखे हैं। चलिए इस ओवर पे एक और गेंद के साथ शबीर लेफ्टी ने उठाया, इस बार ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आएंगे, लेकिन नो मैच लैंड पे गेंद गिरेगी और पीछे आए हैं वहाँ पे। अगर हम खालिद भट्ट की बात करें, एक और रन का इजाफा, ओवर का भी हुआ खात्मा 12 के बाद 149 दो खिलाड़ी के नुकसान पे है। And it's all batting that has been a real class today. Talk about the extras. Only 2 extras have been scored. They have been disciplined with the bowling, but the only thing they lack, I guess, the spot of the ball, the length of the ball, the track, and the pitch of the ball is something they have not worked on, and that is why there has been a bulk of the runs scored. So now, as we find there is a bit of a break out there going, what you believe should be the strategy now onwards? Still, they should believe and concentrate and introduce more of bowling options when it comes to the spin, or it's a time to go back to a pacers. बिल्कुल यहाँ पे अगर आपका कहना सही है, because मुझे लगता है यहाँ पे पेसर्स के साथ आपको एक बार ज़रूर करवाना चाहिए यहाँ से, और वो आपके लिए वो मौका हो सकता है। लेकिन यहाँ से जो भी सोच है स्काई स्टार्स बडगाम की, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। एग्रेसिव माइंड सेट के साथ खेल रहे हैं। और करंट रेट की बात करें, वो पहले 13 साढ़े 13 के आसपास थी, अभी भी वो 12 के आसपास ही है, उसको नीचे नहीं आने दिया। और विकेट्स भी आपने सेव करके रखे हैं। यहाँ से सरकार 11 की टीम को सोचना होगा, एक विकेट यहाँ पे हासिल, 1-2 विकेट्स अगर हासिल करेंगे तो रनों पे अंकुश लग सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये दोनों सेट हो गए तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। At the moment, it won't be wrong if you say once again, when the left and right hand combinations start to tackle the pace and speed of Sarkar 11, they look completely ordinary bowling unit. And I guess the captain has listened to our comments. He is going back to his pace. And it's another bowling change. It's Sajjad who has been introduced. And let's find out what he has got in his bowling. Talk about the fielding, no slips in place, short third man in place. If we talk about there is a point in place, there is a deep point in place. There is the covers, there is mid-off. Long off just brought inside the circle, looking on the onside, long on, short mid-wicket, deep square leg, deep backward square leg. No one on the fine leg, so slightly down the leg stump. Shibir left is a very delicate, just clicker and flicker off the ball. So now he looks in a, if we can say, he looks in absolute connection, pitching the ball up, and he may be punished for more runs. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे बोर्ड में नजर आ रहा है। 58 रन पे खेल रहे 31 गेंद का सामना किया है। आदिल कास्ट्रो की बात करें, 10 गेंदें अभी तक फेस किए, लेकिन 12 रन पे खड़े हैं वहाँ पे। प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें, 250 के आसपास नजर आ रहा है। क्या 250 के आसपास पहुँच पाएगी ये टीम या नहीं, ये देखने के वाली बात होगी। लेकिन आज जाहिद नबी की सर्विसेज मिस कर रही होगी ये टीम। पहले मन बनाया था बड़े शॉट का, इसके बाद जब उंगलियाँ फेरी थी वहाँ पे गेंद पे, थोड़ा सा रुकी आई गेंद और फिर शॉट को चेक करके खेला ऑन साइड में, एक और रन का इजाफा होता हुआ। The runs are not stopped at all. Continuously the runs are being scored with Adil Kachru just playing on a dozen of 10. Yeah, so it takes a bit of a time to settle, just check his sight on the ball, and as he just gets set on the crease, then it's pretty difficult to challenge this man. And the form he just carries since the last 2-3 proceedings, he may be a very different caliber today. There he goes, long up comes underneath, but it falls short of the man. I guess he just checked his shot and he just gone with the same plow that he carried. It could have gone to the hands of the long off fielder, but ultimately Adil Kachru survives another single. It's 150 up on the board. It's 151 for 2. And no doubt if we call that they're just approaching for something massive today. हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। ठीक से भले पे गेंद आई नहीं थी आदिल काचरू के, इस बार थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश, लेकिन ज़्यादा दूर कर बैठे। वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से, और शबीर लेफ्टी भी अब चाहेंगे कि हर किसी गेंद पे बड़े शॉट के लिए जाए। 30 की पार्टनरशिप लगी है, 21 गेंदों की अगर हम बात करें अभी तक इन्होंने ली है, लेकिन इसको और अच्छा करना होगा। यहाँ से अगर हम स्किस टाइम की बात करें, वही से सरकार 11 की बात करें, वो चाहेंगे कि शबीर लेफ्टी की सेट विकेट को यहाँ पे हासिल करें, उनके लिए बेहतर रहेगा। Wickets is only the option left for them to be back in the business. No, that's gone over square leg, and that's gone the distance. What a bang shot from this dashing and elegant left striker of the ball.
He should be left in indeed. He has got the best moment today to deliver, and I guess he's delivering at the crunch moment. It's a semi-final. You win, you cement the place in the final. You lose, you pack bags back to your home. क्या कमाल का स्ट्रोक, गेंद के लाइन को पहले पिक किया था और डीप स्क्वायर के डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं। और अभी इनकी इंडिविजुअल स्कोर की बात करें 65 पे पहुंचे, होम क्राउड के सामने खेल रहे शबी लेफ्टी। इस बार खेला है गली की तरफ, तेजी करनी होगी और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया कि दूसरे के लिए जाएंगे। जी नहीं, एक ही रन बनाने का मौका इनके लिए, और अच्छा मौका क्या हो सकता है। अपने होम क्राउड के सामने आज खेल रहे शबी लेफ्टी, चाहेंगे आज यहाँ पे अच्छी पारी खेलना। Indeed. Playing under your home crowd, playing at your home ground, playing just having a lot of spectators and supporters just supporting you. And it won't be just bad thing to just but one thing must be going through the mind of Shibin Lefty. It's a better scene to try and convert this into big hand run. बिल्कुल आज चाहेंगे कि शतक लगाए, कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद को खेला मिड विकेट की तरफ और थोड़ा सा फंबल हुआ, उसी का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। तेजी के साथ दूसरा रन बनाने का भी मौका, इन 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा। 161 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 161 the run rate. It's going around 13. It's 12.55. The projected score does show around 260. And Adil Kachro just started to middle the ball. Good connection, tapping the ball up. And once again going through for a single. Done with the over number 13. 13 gone. It's 162 for 2 Sky Stars Badgam. Asked to bat first after losing the toss. Remind you, we are live from Sports Stadium Pulwama. This is Royal Super League in its first edition. And it's a second semi-final. Already we have got Hope Outfits defeating the great and mighty Royal Goodwill in the first semi-final. Hope Outfits are the first finalists. And today we are witnessing the second finalist. Let's find out who is going to rise to the occasion and which one is going to crumble under the pressure. And talk about Shibli Lefty and Adil Kachro. They are the big players of the big occasions, and once again they prove the mettle, they prove the real caliber. The way they are proving it real, it's only the performance that's speaking. और बिल्कुल साफ तौर पे वो नज़र आ रहा है जो परफॉर्मेंस देते हैं। अगर हम शबी लेफ्टी और यहाँ पे बात करें आदिल काचो की, अगर हम बात करें, वो लगातार वो परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते हैं अपनी टीम के लिए। और शबी लेफ्टी चाहेंगे यहाँ से शतक मुकम्मल करे, क्योंकि होम क्राउड के सामने जब आप शतक लगाते तो मेमोरी हमेशा आपको याद रहती है। वो ओकेजन आपके लिए हमेशा वो यादगार रहता है। क्या वो लगा पाएंगे आज या नहीं। और स्कोर की बात करें 162 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, 13 के बाद 7 ओवर का खेल बचा है। और प्रोजेक्ट स्कोर की अगर हम यहाँ से बात करें तो 250 के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन नज़र आ रही है। क्या यहाँ से सरकार की टीम को जो भी टारगेट मिलेगा क्या चेज कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लॉन्ग ऑन के साथ गेंदबाजी हो रही है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी को पीछे रखा है, वैसे डीप पॉइंट भी सेट किया है। और आदिल काचो की अगर हम बात करें, इनके पास वो दबाव होगा नहीं, अभी प्लेटफॉर्म सेट करके रखा है जो भी बल्लेबाज अभी तक है। तो आप यहाँ से चाहेंगे जितना ज़्यादा रन आप बनाएंगे आपकी टीम के लिए बेहतर वो रह सकता है। गेंदबाजी की अगर हम यहाँ से बात कर, देखने वाली किस प्रकार की गेंदबाजी अब रहेगी यहाँ पे आदिल काचो के सामने। चले पहले गेंद के साथ कदमों का इस्तेमाल किया, वहाँ पे खेला चाह रहे थे मिड विकेट की तरफ, गेंद गई थर्ड मैन की तरफ। 1-2 टप्पे के बाद गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। और यहाँ पे कोशिश यही है रन्स बनाने का, इंटेंशंस तो क्लियर नजर आ रहे हैं यहाँ पे आदिल काचो के। रन जैसे भी आए, रन स्टेज पे मैटर करते हैं इसके स्टार्स बडगाम के लिए, और रन्स आ रहे हैं इस टीम के लिए। 162 2 खिलाड़ी के नुकसान पे क्या ये टीम 250 260 तक पहुंचेगी? फिर एक चुनौती ज़रूर हो सकती है सरकार 11 के सामने। हालांकि बैटिंग में गहराई उनके पास भी ज़रूर है, फॉर्म में है खालिद बट, लेकिन यहाँ से 250 प्लस का अगर आप टारगेट मिलेगा तो हमेशा दबाव होता है। इस बार पैर पे गेंद थी, उठाया है स्क्वायर लेग के, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, और गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर। 6 रन के लिए और 50 की पार्टनरशिप लगी है मात्र 27 गेंदों में। और बल्लेबाजी लाजवाब हो रही है, जितनी तारीफें की जाए उतनी कम आदिल काचो की बल्लेबाजी की। आज कैप्टन है, ललहार में भी कैप्टनी पारी खेली थी और यहाँ पे भी उस प्रकार की पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोकना नामुमकिन सा लग रहा है इस बल्लेबाज को। इंटेंशंस क्लियर नजर आ रहे हैं, रन आ रहे इस ओवर में। चले एक और गेंद के साथ, उंगलियां फिर से उठाना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। डॉट गेंद
अब हर किसी गेंद को फ्री हिट की तरह लेना चाह रहे हैं यहाँ पे आदिल कास्ट्रो। ये सोच भी मुझे अच्छी लगी है इनकी, क्योंकि विकेट्स आपने सेव करके रखे हैं। इसके बाद बोई मीर का आना बाकी है, सलीम मीर का आना बाकी है, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है यहाँ पे। Well, I guess it's all smiles on the faces of commentator as well. Next ball, punches off the back foot. Finds the man in the covers. Another single to Adil Kachro. The damage has already been done in this over with a 6 and a boundary. As we could see, some good hitters still in the death. Poyamir from Badgam. He's a very good slugger. Talking about Asif Ramzan, a stylish, dashing. We also have Arif Pambai. He can also hit the ball well. So problems is not with the Sky Stars Badgam. The problem lies with Sarkar 11. They need wickets and they need bundles of them to be back in the business. It should be lefty waiting now. Round the wicket he goes. And he just plays it beautifully. The ball is running away. I guess it will win the race. Yes, it does. The fielder was running hard, but he could not just stop. And such was the massive timing and placement from this man. And you could see Adil Kachro just patting Shibli left his head, and it's some great encouragement and boosting the man. बिल्कुल बहुत क्रिकेट आपस में खेली और आज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। अभी अगर हम शिबी लेफ्टी की बात करें, आज अलग ही मोड में नजर आया है। बिल्कुल यहाँ पे जिम्मेदारी के साथ आज खेला और अच्छे इंटेंशंस के साथ आज शिबी लेफ्टी ने यहाँ से खेला है। 177 for 2. And there he goes! That's gone! That's gone the distance! I could say that this was a slower ball in air, but it shuffles across. He's got habitual of this, just dragging it from the up stump. And the swing of the blade of Shibli lefty, when most of the time as it does try to play over Skellig, it's indeed an awesome moment to watch. And you could see the best day of Shibli lefty to show the best he possesses. बिल्कुल आज उनके लिए वो मौका था, आज बड़े स्तर पे खेल रहे थे, अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे थे। आज अगर ऐसी पारी खेले तो हमेशा यादगार रहते और इनके लिए और इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है शिबी लेफ्टी के लिए। आज अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। Well, he looks in a different mood. He looks altogether in a different mood. It's 183 for the loss of 2 wickets. It should be lefty. With every run he does score, gets close to his century mark. And he deserves a century under a massive crowd out here in local ground of Sports Stadium. What a knock. This is a top-notch performance, top-knock, classical knock from classical cricketer. He's representing himself at some bigger levels of cricket. And he does believe his caliber, and it does reflect and reveal why he is a star of Pulwama. It's Adil Kachro now waiting. And he goes! Pulls it! This is his favourite shot! Waiting for the signal, and it's one bounce over the wideish long on for 4. And I could understand nothing at all. The game planning, the execution, the strategy, and the game awareness of Sarkar 11. They're missing everything today. बिल्कुल यहाँ पे आज जो गेंदबाजी का स्तर है वो बहुत नीचे गया है। यही कॉन्फिडेंस कराते, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो यही होता है आपके सामने। हमेशा नया दिन होता है, नए स्ट्रेटजी के साथ आपको मैदान में उतरना होता है। लेकिन जब टॉस पे भी बात हो रही थी साल के साथ, वहाँ पे भी वो कॉन्फिडेंस लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आया वहाँ पे। और इस बार ठीक तरह से बल्ले पे नहीं, और वहाँ पे मौका हो सकता है। वाइडिश मिड ऑफ की बात करें, प्रयास लाजवाब था वहाँ पे, लेकिन नहीं पकड़ पाए और तेजी के साथ दूसरा रन बनाने का मौका। शानदार रन बिट देकर दोनों बल्लेबाजों को। You just can't afford to drop that, even though it was a half-hearted chance. Very tough one at the extra cover. And in the meantime, Adil Kachro is great and quick runner between the wickets. It does remind me of Akim Mir, and he's also a very great runner between the wickets. बिल्कुल रनिंग बिट देकर बहुत अच्छे रहते हैं। कदमों का इस्तेमाल किया ठीक तरीके से, बल्ले पे नहीं आई गेंद, लेकिन नो मैच लैंड पे गेंद गिरेगी क्योंकि डीप में खिलाड़ी मौजूद है। एक और रन का इजाफा होता हो, इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा। अब 190 पे पहुंचा है स्कोर को 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे, तो 250 के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है टीम। Absolutely. They would love to just carry more than 250 on the board. Should be lefty. With every run he scores, he gets close to that century mark.
He's batting on 80, still 20 away, a long way to go for Shabir Lefty. And in the meantime, we witness some fielding changes. We find a wideish third man in place. There is a point in place. There is a deep point. There is covers. There is mid-off up in the circle. Where is this one going? That is lovely. That is once again going over. Oh, wonderful stopping his right boot. Yeah, this could be said that he just saved 3 runs for his side. Saklan, what do you reckon? This is what they need to just lift the team up. हाँ बिल्कुल 2 ही रन साहब 2 रन वहाँ पे ज़रूर बचा अपने टीम के लिए. फुटबॉल स्किल्स दिखाते हुए वहाँ पे शूज़ का इस्तेमाल किया और यहाँ पे एक रन का महत्व बढ़ जाता है. एक रन सेव करने होंगे, थोड़ा बहुत दबाव बनाना होगा. लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें, वो कभी दबाव बनाने में कामयाब हुए ही नहीं. आपने कभी 2-3 गेंदें डॉट की ही नहीं. अगर हम इस मैच की बात करें, वहाँ से मुझे लगना You believe just having the celebration overnight, getting over the title of Bijbara Premier League on the pads, tried to call it back. Most of the time is now we could see some better changes made in this over. Look at the position and the slot of Khalid Butt standing at a short mid-wicket position on the pads. Flicks it, finds the man, and the great knock comes to an end, and he will surely just find a great round of applause and appreciation from all the cricketers, mates, spectators, public and people over there. It does deserve a wonderful round of applause. बिल्कुल जितनी तारीफें की जाए शबीर लफ्टी की उतनी कम. और जो बल्लेबाजी की है, आज तारीफ़ें तो बननी होगी इस खिलाड़ी की. आज तारीफ़ें जितनी आप करेंगे वो कम होंगे कि जो बल्लेबाजी की है वो लाजवाब की, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेले. मुझे नहीं लगता आसिफ रमज़ान आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए. अब यहाँ से या तो बोईमीर आएंगे या सलीमीर आएंगे, और मुझे लग रहा है सलीमीर आए बल्लेबाजी करने के लिए. ये मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा है. और कैप्टनशिप की बात करें, कुछ मैचेस से आदिल कास्ट्रो में बहुत अच्छी कैप्टनशिप स्किल्स नज़र आती है. Absolutely, he is making some bold moves. He's making some changes in the batting order. He makes some changes in the bowling order as well. So overall, plenty of matches. If we look in the past, he definitely, as a captain of the side, has brought a bit of a revolution in the side of Sky Stars Budgam, because Adil Kachru is known for making some bold decisions and changes, and it's being reflected and revealed out here in Pulwama. देखिए यहाँ पे अगर आप वो बोल्ड डिसीजन लेंगे तभी तो रिजल्ट आएंगे ना आपके फेवर में. वैसा ही कुछ नज़र आता है. जब भी ऐसे डिसीजन लेते थे कि कभी कभार आपको सफलता मिलेगी भी नहीं, लेकिन जब आप बोल्ड डिसीजन दिखाते तो फिर आपको समझ आती है कि आप किस लेवल के कैप्टन हैं, और वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है. और अब आए हैं सलीमीर. आपको पता होगा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के साथ की था. रिसेंटली उन्होंने 50 की पारी खेली थी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए, लेकिन वह मैच नहीं जीत पाए डूडू रेंजर्स के सामने, और ये टीम कश्मीर कप से बाहर हो गई अगर हम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करें. Either Salim comes, either Bashir comes, and both are boy Amirs. But rather fortunately, one of the Mirs has come over there. बिल्कुल देखने वाली बात होगी. अब यहाँ से इनके पास लाइसेंस है, कोई दबाव आपके पास है नहीं. आपको अपनी नेशनल गेम खेलनी यहाँ पे. जितना आक्रामक शैली में खेलेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ ही ओवर्स बचे अब यहाँ से. देखने वाली बात होगी. यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 ओवर्स इसके बाद बचे हैं, तो यहाँ पे आपको कोशिश होनी चाहिए एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे करें. जितनी अच्छी बल्लेबाजी करें, जितनी स्ट्राइक रेट अच्छी रहेगी, उतना अच्छा रहेगा सिकंदर बडगाम के लिए. So Boymir ready to face the first ball, plays it on the onside down to long on, and marks a presence on the ground with opening his account. And marks the end of over as well. 15 gone. They are into 190s, and we got with us Imobai. What do you reckon? What should be the score for Sky Stars Budgam? बिल्कुल 5 ओवर बचे. अभी भी अगर मैं बात करूँ तो 30 लीगल गेंदें बची है इस टीम के पास, और बल्लेबाजी में काफ़ी ज़्यादा गहराई आपको नज़र आएगी. मात्र वो 3 सफलताएं, 3 विकेट्स अब तक गंवा चुकी है टीम. तो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल करीबन वो 230-240 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. लेकिन क्या यहाँ से वो वापसी सरकार 11 के गेंदबाज अपनी टीम को करवाएंगे? क्या आदिल कास्ट्रो अंत तक बल्लेबाजी करेंगे? और सलीम मीर की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजों में उसका शुमार किया जाता है. तो बाबा बिल्कुल मेरे जहन में एक बात चल रही थी. हालांकि अगर मैं कल के मुकाबले की बात करूँ, सेम टीम जो अभी फील्डिंग कर रही है, हालांकि कल परस्तें कुछ अलग थी, और शायद इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्रिकेट किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, और हर दिन एक नई सोच के साथ आपको मैदान में उतर के बल्लेबाजी करनी होती है. Absolutely. Every day is a new day. Sweeps it nice. And there is a backward square region. Cuts the ball off, and the way you just raising the point. And the approach that looked from the side yesterday out there in Bijbara Premier League, defeating the mighty side of Parvez Rasool, Bijbara Sports Club.
somehow you could mention and believe it's all impact of that celebration overnight, knowing that getting over Bijbiara Premier League and taking a bit easy out here in this all important semi-final. So overall it's making a bit of a impact on the side of this very Sarkar 11. बिल्कुल हमसे ज़्यादा शायद ये खिलाड़ी जानते हैं क्या उसी चीज़ का ये इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने आज टॉस जीता और टॉस जीत के वो पहले गेंदबाजी करना पुलवामा में बिल्कुल मुझे कुछ अजीब लगा था, लेकिन कप्तान के अलग विचार और साथ साथ बाबा सकलैन और रिमू भाई के अलग विचार फिलहाल, और एक चौका यहाँ पे 6 स्टार बडगाम के खाते में जाता हुआ, हालांकि मारने की कोशिश की थी वो गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास इस बार आदिल काशरू द्वारा, लेकिन वो सिरे से गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, और एक चौका और चौके की मदद से आप जाके वो धीरे धीरे वो 200 जो मेरे ख्याल से एक T20 में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, वो जब हम मानसिकता की बात करते हैं, लेकिन इस बार स्विच हिट के खेलने का प्रयास किया था, अब बल्ले पे गेंद लगी नहीं, हालांकि कोस रहे अपने आप को, और वो मुस्कुराहट ठीक बयान कुछ अलग कहानी करती हुई यहाँ पे आदिल काशरू के चेहरे से, लेकिन वो शायद वो डीप पॉइंट पे खिलाड़ी शायद वो बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, एक बार फिर वो जगह बनाकर, और खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद तो है, हल्का सा फंबल उसका लाभ लेते हुए 2 और रन मिलेंगे यहाँ पे। और फील्डिंग की बात कीजिए, बाबा आज उस प्रकार की फील्डिंग नज़र नहीं आए जिस प्रकार की फील्डिंग के लिए जानी जाती है, अगर मैं यहाँ पे सरकार 11 की बात करूँ। And if you look properly at the wicket keeper, the last ball you mentioned, and he was signaling something to this special bowler to right ball. Look at that again. He's signaling him to ball right over the off stump. And that one has been crushed off the back foot. There is the fielder. He will surely cut the ball off. And it's 200 up on the board. And the runs now leaking a lot, coming in bulk and coming in numbers for the side of Sky Stars Budgam, knowing that they've got plenty of wickets in the courtesy. And absolutely they can hit the mark on the side if we talk about the bulk of the runs. But Adil Kaishru talk about the approach of this man. Good captain and a great reader of the game. Good hitter of the ball. Already coming up with a century just a day ago out there in the quarter-final Lelhara Premier League. So it's all confidence that's speaking a lot. What do you reckon? He should stay on the crease, and if it does stay till the end of the 20th, the runs are surely going to come in huge numbers for Budgam. अब बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आज फॉर्म में बल्लेबाजी, और बिल्कुल कहीं ना कहीं वो T20 में जब आपके सलामी जोड़ी एक बेहतरीन वो विस्फोटक शुरुआत देती है, तो कहीं ना कहीं कप्तान के लिए वो चीज़ें आसान रहती है, वो बल्लेबाजी को मैनेज करना या फील्डिंग को मैनेज करना या गेंदबाजी को मैनेज करना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जिस प्रकार से वो शतकीय साझेदारी बिल्कुल साकिब पांड्या और शिबिर लेफ्टी के बीच में जो पनपी थी, शायद उसी का यहाँ पे वो जो नताइज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाबा ये जो 24 गेंदे शायद डिसाइडर हो सकते हैं इस मुकाबले के, तो दोनों टीमों के पास एक सुनहरा मौका है, यहाँ से एक अच्छा कमबैक करने का मौका सरकार 11 के पास। अगर ये आने वाले 24 गेंदों में बिल्कुल रन गति पे बिल्कुल लगाम लगाई जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 220, 210 या 215 तक बिल्कुल अगर रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब रहे तो बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला देखने को मौका मिलेगा। It's Sajad, and it's Adil Kaishru. Go, not going. It's beautifully caught. And Adil Kaishru is disappointed. He can't believe this. How come this ball just not travel all the way? It's looked great with the connection, but looked bad with the distance. And ultimately, we have to wait again. It's a no ball, I guess. We're not pretty sure. No, it's not a no ball. It's a clear decision, and Adil Kaishru is walking back. And what do you reckon? What do you reckon, Imu? For a moment we thought that the ball is surely going to go the distance. बिल्कुल जिस प्रकार से हालांकि वो तेज़ गति का इंतजार कर रहे थे आदिल काशरू, क्योंकि साहिल की अगर बात करें तो ज़्यादातर वो फास्ट रन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार वो चतुर चालाक की यहाँ पे दिखाई है गेंदबाज ने, वो गति कम दी थी, शायद इसके कारण वो डिस्टेंस वो एलिवेशन जो प्राप्त करना चाहते थे आदिल काशरू, और वहाँ पे बिल्कुल मात्र एक खिलाड़ी और गेंद उसके हाथों में। Absolutely a very simple catch. Adil Kaishru departs. I guess it's number 4. Let's wait who walks down. I guess it's Boyamir from Budgam, who plays for MLA Gymkhana Budgam. Plays for some other different cricket clubs out here in Kashmir Valley. It's Ropemeer. No, it's not Boyamir. It's Ropemeer. Another Meer. We've got plenty of Meers today playing for the side of Sky Stars Budgam. And I guess Saklan is surely going to sum it up. Plenty of Meers playing for the side. What do you say? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीर्स खेल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बोईमीर, सलीम मीर की बात करें या रूफ मीर की बात करें, और मीर खेल रहे हैं, और देखने वाली बात है तीनों मीर कैसे परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ से तो दोनों मीर खड़े हैं, और देखने वाली बात होगी ये दोनों मीर कितने रन्स बनाएंगे अपनी टीम के लिए। हम स्टार्स की बात करें,
It's going to be Rohmir getting ready to face Sajjad. Will be ecstatic and energetic after getting the dangerous man Adil Kachru out in the long. It's 2-1 for 4. We are in 17th. Driven nice, square off the wicket. Good fielding. And they go through for a single row. Bar gets off the mark. But the way, if we just try to assess and analyze after those last 2 overs, there has been a complete blockade on the flow of the runs, and we can say it's a bit of a comeback by Sarkar 11. बिल्कुल शेबी लेफ्टी के आउट होने के बाद वो रन्स आ नहीं रहे, यहाँ पे निराश होंगे इसके स्टार्स बडगाम की टीम, क्योंकि जो यहाँ पे परफॉर्मेंस अभी तक उन्हें दी थी, चाहेंगे कि 240-250 तक पहुँचे, लेकिन सरकार 11 के पास भी मौका है, अगर 10-20 रन ही देंगे इन 3 ओवर्स में, या 3-4 ओवर्स बचे यहाँ से, तो फिर उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो डिसाइडर हो सकते हैं इस मैच के, जो इमू भाई जिसका जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इनके बल्लेबाजी में भी वो गहराई है, वो डिसाइडर हो सकते हैं. Never take the game easy. Sometimes the bigger scores are chased. And this time gives himself room, no proper convention, but still he will make the ball count for 4. Lovely shot that is from Salim Mir. He got back, shuffled back, creates a bit of a room, even though there was no proper connection, but still that was hit in the gaps, and he finds the first boundary of his quota. The runs are not stopped at all. They're coming in numbers, they're leaking a lot. It's 206 for the loss of 4. We are in over number 17. Sajjad, is he surely gonna make some variations what he need at the moment desperately? Next ball, pulls beautifully just over the head of the fielder over there. And that is a trademark signature shot of Salim Mir. And if I'm not wrong, if you just assess his innings recently in the Kashmir Cup, almost he took his team, Sultan Warriors, Baramulla, over the line, fell short by 2 runs, and he was chasing 23 in that last over. और बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, यहाँ पे कहना जो बल्लेबाजी उन्होंने की थी लास्ट गेम पे, जब 7 रन चाहिए थे तब चौका आया था, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी. इस बार फास्ट हैंड्स और बैकवर्ड पॉइंट बॉल लाइन से बाहर 4 रन के लिए. खसूसियत यही है इस खिलाड़ी में, गिन की लाइन को पहले पिक करते हैं. इससे पहले जो पुल किया था उसमें भी फास्ट हैंड्स दिखाए थे, यहाँ पे भी जो शॉट खेला, स्क्वायर ड्राइव किया इस गेंद को, यहाँ पे भी फास्ट हैंड्स नजर आए. ये तो खसूसियत है इस खिलाड़ी की. Well, he is absolutely having fast hands. The bat flow, the bat swing, the bat position, the grip on the bat, the grip on the handle, it does have. It generates power when he just plays that shot, especially when he just slashes over that off stump region. And he can't take that man away from any format you are allowing him to play. And he can be a dangerous customer, knowing that is always up to that last 3 overs. बिल्कुल 18 गेंदें बची है, और स्कोर की बात करें 216, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे. क्या लग रहा है यहाँ से? 18 गेंदें बची है, तो मुझे लगता है 30-40 के आसपास अगर आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा Sky Stars Budgam के लिए. Well, it will be really a bad blow for the fans of Sky Stars Budgam if they do not finish 250 or over 250. But let's see. At moments we can find some crucial wickets for Sarkar 11, and they are believing in the pace to look after in these slog overs. There he goes, right arm over from the pavilion end, and he just plays it a bit of a flick shot. That's gone over deep fine leg region. What a start to the over number 18, and it's pressure back on the bowlers of Sarkar 11, and the runs are coming in huge humongous way, and it's all going rumble and bumble out here in Sports Stadium Pulwama. बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर गेंद कर बैठे और सही नैसे दी वहाँ पे रूपमीर की बात करें, इनको हमने देखा है एमएलए जिमखाना के साथ खेलते हैं और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और आज वो अच्छा कैमियो अपनी टीम की खेल रहे हैं. 222 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.1 ओवर की गेंदबाजी पे तक हुई है. And it's double Nelson on the board, and those who are just thinking and having a belief at moments we're going a single Nelson or double Nelson on the board, it's a time to have a wicket. It's surely the time going to decide the same and proves is the wicket coming your way. हाँ बिल्कुल देखने वाली बात हो, क्या वो विकेट आएगा या नहीं, लेकिन सिचुएशन बहुत अच्छी है स्काई स्टार्स बडगाम की. अब सरकार 11 की टीम जब चेस के लिए उतरेगी तब उनका स्टार्ट कैसे होगा. मैं यही चाहूँगा कि पावर प्ले में 100 के आसपास बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन विकेट्स उनको ज़्यादा गंवाने नहीं है. लेकिन अगर यहाँ से आप खालिद भट्ट की विकेट जल्दी हासिल करेंगे तो काफ़ी ना काफ़ी हद तक आप वो मैच में बने रहेंगे, अगर हम स्काई स्टार्स बडगाम की बात करें. Rohmir
after hitting that 6. He looks confident. He is batting on 7. He knows that he is only up to one way, that's to try and go big. And this time, slot, and that has been smashed over extra cover. One bounce over the fence for 4 runs. Well, it looks completely ordinary bowling, and the way these two are playing at the moment, they're making, just blasting the balls all over and completely assessing and analysing the bowling procedure of Sarkar 11 today. That's not up to the merit. हाँ बिल्कुल, उस प्रकार की गेंदबाजी अभी तक हुई नहीं है। अगर यहाँ से गेंदबाजी की बात करें, वैसी गेंदबाजी हमें नज़र नहीं आई है। 226 4 खिलाड़ी के नुकसान पे क्या 200-250 तक की टीम पहुंच पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। And Basit has been expensive today. 2 overs, 42 runs. What do you reckon? His economy has been not up to the mark. बिल्कुल उस प्रकार की गेंदबाजी। Oh, take that! That's gone! Goodness me! That's gone into the way Archers. I guess the ball is lost. We are trying to go for a new ball. What do you say? लगातार समझा रहे खालिद बट शॉर्ट गेंद करनी है नहीं, और आप शॉर्ट गेंद कर रहे हैं, लगातार छोटी गेंदें कर रहे हैं, या तो ओवर पिच गेंदबाजी हो रही है, छोटी गेंदें कर रहे हैं, ऐसे तो काम बनने वाला है नहीं। Well, it's a competition between back for 2 runs. Great running between the wickets. And the runs are coming in bulk at the moment. What do you reckon, Saklan? The way this Roop Mead is middling and hitting the ball, the runs are surely going to cross the 250 mark on the ball. बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज भी डाउन नजर आ रही है। अगर हम यहाँ से सरकार 11 की टीम की बात करें कि आपको बल्लेबाजी करने के लिए भी उतरना है, यहाँ से आपको बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहेगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ से दबाव, उंगलियां फेरी थी, शॉर्ट गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए, लेकिन गली और बैकवर्ड पॉइंट पे जो खिलाड़ी मौजूद थे बस दर्शक रह के बन गए। Well, what you talk about the body language, look at the body language of Sarkar 11. It's all they're waiting for these overs to be completed because they are nowhere in the game. The mind goes up, the tactics go up, the skills go up, the platform goes up, nothing working for Sarkar 11. और बिल्कुल ड्रॉपिंग शोल्डर्स की अगर हम बात करें वही नजर आ रहे हैं, कंधे तो उठाने होंगे आपको। अगर यहाँ से आपको टीम को जिताना है तो बॉडी लैंग्वेज सही करनी, क्योंकि आपको बल्लेबाजी करने के लिए भी उतरना है, चाहे टारगेट कुछ भी आपके सामने हो, लेकिन आपको बल्लेबाजी करनी। और ये इशारा देखने वाली बात है कि नो बॉल का इशारा आएगा। जी हाँ, Well, it's a beamer. Remember Waqar Yunus once bowled that beamer to Andrew Simons, and there was a bit of a clash. Listen to the whistling powers out there from Pavilion, and it's going to be bonus for Roop Meer. It's going to be free hit now. तो बिल्कुल अब फ्री हिट तोहफा मिलेगा बल्लेबाज को। क्या इस तोहफे को स्वीकार करेंगे छक्के या चौके के साथ, ये इन पे डिपेंड करता है, लेकिन रूप मीर का आज इंट्रोड्यूस किया गया था प्लेइंग 11 में सिके स्टार्स बडगाम के लिए, इन्होंने वो काम किया अपनी टीम के And लिए। where is this one going? It's a free hit to Roop Meer. And this is a mistimed shot. Even though Khalid Bhatt is coming close. But talk about Basit, but 3 overs completed. He has conceded 56 runs in his 3 overs. That is something expensive. Never you expect such scenarios from Basit Bhatt. बिल्कुल काफी खर्चीले साबित हुए आप। आज इनका दिन नहीं था, लेकिन साफ तौर पे इनकी गेंदबाजों को ओवर कॉन्फिडेंस आज नजर आया है। साफ तौर पे जब टॉस के बाद जब हम बात कर रहे थे साहिल के साथ, उस टाइम भी यही नजर आ रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन हमेशा नया दिन होता है, मैं बार बार कहता हूँ, नया दिन होता है, नया मुकाबला होता है, परिस्थितियाँ वैसी आपको मिलेगी नहीं। कल टर्फ विकेट थी, कल आपके पास ऐसे अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन आज यहाँ पर टर्फ विकेट है नहीं, आज मैटिक विकेट है। आज आपको वैसी स्ट्रेटजी अपनानी थी इस विकेट पे। Well, absolutely. You gotta just have the different tactics. You gotta just have different tactics. Yesterday you were playing on a turf wicket. Today you were playing on a mat wicket. And there has been a complete revolution if we talk about the approach of both the sides. It's about to be the 19th over to be initiated, and Roop Meer is on the strike. What is he gonna do next? Down the leg stump. It's a wide ball.
And cleanly you can hit the nail on the head by observing that it's pressure speaking on the bowlers of Sarkar 11. But these 12 balls, it's 241 for 4. I guess 260 should be on the board. बिल्कुल 260 तक आप पहुंचना चाहेंगे यहाँ से, और 270 तक भी आप पहुंच सकते हैं अगर आप उस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ से करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा स्कोर है, पहली गेंद से दबाव होगा। Whoa! That's gone a wow distance. What a sweet connection from Rovmir. The moment it does hit the bat, it was all 6 runs written on the same. And your emotions, I will count them up. Wow and wow. बिल्कुल काफी लंबा चौड़ा छक्का रोव-मीर के बल्ले से। देखिए आज मैंने कहा था कि रोव-मीर और सलीम मीर खड़े हैं। आज मीर कमाल कर रहे हैं इस टीम के लिए, SK स्टार्स बडगाम के लिए। आज इनको प्लेइंग 11 में इंट्रोड्यूस किया गया तो काम करे अपनी टीम के And I लिए। guess from now onwards it's going to be Mir's company. And again, this time over upside rather. And that's Paul winning the race just backward a point region. Even though no convincing, but still when you are in the rhythm, nothing and no one can stop you. It's really turning something great. He's having bited the cherry. And the question is he surely going to finish with the cherry on the cake? And I guess his movements and gestures are reflecting the same. बिल्कुल वैसा ही कोई नजर आए, लेकिन आप देखिए अंतर देखिए, मैच में अंतर देखिए। कल और इस बार खेला है और फाइनल लेग की तरफ पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक और रन का इजाफा। आप देखिए जो कल का मैच था वहाँ पे सिचुएशन थी क्या, और आज देखिए सिचुएशन। यही तो मजा है इस फॉर्मेट का। इसलिए हमेशा आपको सोचना होगा कि नया दिन है, हमें नई स्ट्रेटजी के साथ उतरना है मैदान में, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। Every day is a new day, and every day cannot be Sunday. Every day cannot be Sunday at your office. You have to come up with a different mindset for your side. And Sky Stars Badgam, they're going absolutely brutal and lethal today with their explosive characters. And talk about Rovmir, 11 balls, 33 runs. He's going at a strike rate of 300. And look at the approach. That is absolutely ordinary. Leaking the runs, and it does reflect and reveal you are going under crumbling pressure. बिल्कुल आराम से रन दे रहे हैं अपनी टीम की, अगर इनकी टीम की अगर हम बात करें। लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत साधारण हम नजर आ रही है, लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे मुझे लगता है इनके लिए इनके पहली गेंद से दबाव होगा रुका रेड का। Now that 250 is up on the board. It's 255, still 1 over left after this gets done. And it's surely turning out to be mammoth total now. बिल्कुल आपका नाम बिल्कुल सही है। इस बार वाइडिश लॉग ऑफ की तरफ गेंद गई है, एक और रन का इजाफा होता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा 256 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। और अभी भी यहाँ से अगर हम बात करें तो 7 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। 7 गेंदों में और कितने रन बना पाएंगे दोनों। अगर एक जोड़ी की बात करें, सलीम मीर और रूफ मीर आज इंट्रोड्यूस किया गया था प्लेइंग 11 में। अगर हम सलीम मीर और रूफ मीर को बात करें कि अगर हम बात करें जब गेंदबाजी करेंगे तो कैसी गेंदबाजी करेंगे, उठाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, डॉट गेंद। अब आखिर की 6 गेंदें बची है, स्कोर 256 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। स्कोर कमाल का नजर आ रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ से बात करें, होप आउटफिट्स ने भी इस टूर्नामेंट में शायद 270 के आसपास शायद बनाया था, वो मैं जानने की जरूर कोशिश करूंगा अपने स्कोरर से। लेकिन अभी और बिल्कुल कितना रन्स बनाए थे, 280 रन्स बनाए थे, तो क्या 280 तक पहुंचेंगे अब यार, वो मुश्किल लग रहा है 280 तक पहुंचना। लेकिन आप 270 तक तो पहुंच सकते हैं, 275 तक भी आप यहां से पहुंच सकते हैं। और एक जो SK स्टार्स बडगाम की टीम ने जो इंटेंट दिखाया है वो लाजवाब इंटेंट दिखाया है। और सरकार की टीम की जो की बॉडी लैंग्वेज की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा डाउन नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डाउन नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज को सही करना, भूल जाइए अभी गेंदबाजी कैसी हुई है। अगर आप बल्लेबाजी अच्छी करेंगे तो मैच बन सकता है आपके लिए, आप मैच को जीत भी सकते हैं, आपको हिम्मत अभी हारनी होगी नहीं। लेकिन वैसा कुछ नज़र आ रहा है कि हिम्मत अभी हार चुके हैं सरकार 11 की टीम। जब वापस थोड़ा सा ब्रेक 5 मिनट करेगी, उसके बाद जब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए बहुत सोच विचार करना होगा कि इंटेंट कैसा दिखाना है। उंगलियां फेरी थी और गेंद को पहुंचाया बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। पहले बांप लिया था कि यहाँ पे बैक ऑफ द एंड स्लोअर आप डालेंगे, या तो आप उंगलियां फेरेंगे, और सही नसीहत दी बल्लेबाज ने। Well, nothing working at all. Aqib Habibi, he is not turning out to be a real Habibi today for Sarkar. 48 he has conceded, goes to Salimir, rolling fingers. Look at that! That's a crack
cracking cut off the back foot by Salim Mir, and the ball takes no time to travel over the fence. And there is a correction with the batter's name. It's Roop Mir who's tackling at the moment. 10 of the first 2, and the score is 2-6 for 4. Ultimately, this man is surely going gem at the moment. 46 runs he conceded of 14 balls. You won't see these things out here in T20 cricket. Next ball, that's been cleared. I guess that's gone all the way. This is a flat 6 for this man. It's 50 up. My goodness, just 15 balls for Roop Mir. And you got to say that is a batting carnage. And I guess absolutely a batting carnage by this man. आज वैलीवुड का बैट है इनके हाथ में, आज आग उगलता हुआ नजर आया है। आज इनकी ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ेगी अगर हम वैलीवुड्स की बात करें। जो बल्लेबाजी आज की है रूप मीर ने, वो कमाल की बल्लेबाजी की है आज। And history is about to be scripted. It's 272. Oh! Whoa! 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 That is a wow shot from Roop Mir. He's going all hammering and tongs. He's mixing his style. He's mixing his potential, and he's making the bowler dance now after going through his minds. What's going wrong with his bowling? Nothing wrong, but it's all great timing from Roop Mir. And take that. It's 278 on the board. Just 3 runs they need to script a history and surpassing that highest total of 280. And take that. He has conceded 64 in 15 balls. और क्या मार पड़ी है आज यहाँ पे। अगर हम गेंदबाजों की बात करें, कोई भी गेंदबाज प्रभाव नहीं छोड़ा इस विकेट पे। जो भी गेंदबाज आया आज तो धुलाई हुई है बल्ले से। अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो 2.4 balls, he has bowled 64. Next one, there is a missed time. Somebody come underneath. Somebody, yes, he takes the catch. And ultimately the innings of Roop Mir has come to an end. But what a knock. And he receives and deserves that reception and accord out there in the dugout. My goodness, what a knock. 58 of 17. And you won't see this innings quite often out here in Kashmir cricket. Saklan, what do you reckon now? A great score on the board. 278 for 5 with last ball coming over. हाँ, ये तो आज कमाल ही हुआ है इसके स्टार्स बडगाम के फैंस के लिए, क्योंकि हमेशा चाह रहे थे कि इनकी टीम एग्रेसिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे। ये देखिए तालियों से स्वागत हो रहा है बल्लेबाज का। क्यों ना हो, सरकार 11 की अगर हम बात करें वो कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है। कोई भी गेंदबाज के पास 2 ही खिलाड़ी नजर आए वहाँ पे। सेलिब्रेशन की अगर हम बात करें, और वहाँ पे साहिल को की अगर हम बात करें, लगातार उनके चेहरे भी मुरझाए हुए नजर आए। अगर हम सरकार उनकी बात करें, और वैसे साहिल की अगर हम बात करें, देखिए साहिल काफ़ी निराश नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है इनको ये भूलना चाहिए कि कैसी बल्लेबाजी हुई। जब मैदान में उतरेंगे तो वो भी अगर इस इंटेंट के साथ आएंगे। देखिए एक और जब अब आए हैं बोई मीर बल्लेबाजी करने के लिए। मीर ने तो कमाल कर ही दिया। अगर हम रूप मीर की बात करें, अब आए हैं बोई मीर, एक और मीर आ चुके हैं, और बिल्कुल हैट्रिक ऑफ मीर्स हुई आज तो बल्ले है इसके स्टार्स बडगाम के फैंस के लिए और इस टीम के लिए, जिन्होंने जो स्कोर अभी तक बनाया 278 के आसपास अभी तक बनाए। आखिरी गेंद या छक्का लगाएंगे या चौका लगाएंगे या यहाँ पे विकेट हासिल करेंगे, या ये देखने वाली बात होगी। और बोई मीर ने उठाया है, क्या आउट हो गए वहाँ पे? जी हाँ, आउट हो गए, और इसी के लिए इनको भेजा गया था यहाँ पे। 279 का लक्ष्य मिला है। सरकार 11 की टीम को एक पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला है अबूर करने को। मिलते हैं सेकंड इनिंग्स में, तब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।